some key points and some major topics, some major information regarding the UNFCCC. So please, on that piece of paper, with your pen, with your pointer, you can write that information for your future use. So, as our recording has started. So, hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Daniel Kamal. I am the Secretary STGs at the Burak Association, and along with the Burak Association, I am the co-founder for READ Resilience and Adaptation. I warmly welcome all of you for the very first session of Youth Climate Negotiated Training. Well, YCNT, in the Burak Association, we really thought of organizing the YCNT because as COP30 is on its way, and we will be just concluding the very first week of COP30 by tomorrow. And till now, we have had some really good declarations that have been passed by the UNFCCC. And among the declarations that have been passed by the UNFCCC, the one of the most important ones is the Declaration of Information Integrity on Climate Change. And apart from this declaration, some major things have been happened in the COP30 so far, as the indigenous populations in the Brazil, they have really attacked the COP30 venue, as they were not standing with the presidency of Brazilian government, because before commencing the COP30 2 weeks before, the Brazilian government ordered to start oil drilling near the COP30 site. So this really enraged the Brazilians' indigenous population, and they really attacked the COP30 venue. But luckily, so far, it's going really good. However, recently, I guess roughly 4 to 5 hours before, the UNFCCC really advised the Brazilian government to please tighten their security around the premises of COP30 venue. And apart from this, if I would like to tell you the recent news that has been circulating in the COP during the COP30 proceedings, it is like we really do not know what will be the next who will be the next host country to host the UNFCCC COP31. However, the chances are either Turkey, formerly known as Turkey, or apart from Turkey, Australia with the Pacific Islands Association uh, will host. But if they both will not be backing down, the hosting will be going back to the UNFCCC Secretariat that is in Bonn, Germany. And apart from this, one of the major keys, you can say one of the major key decisions that has been taken so far is the African COP. In 2027, the COP32 under the UNFCCC framework will be going to take place in Ethiopia, as the Ethiopian government has been uh, supported by the African Group of Nations, and African Group of Nations highly supported the Ethiopian government, backing down the Nigerian government. So in 2027, the UNFCCC COP32 will take place in Ethiopia, and for the very next COP that is going to happen in next year, till now we have not gotten any host country. So let's hope for the very best that it will be Turkey, so that most or maximum number of delegates can go from Pakistan to Turkey. Or if it will be Australia, we will not be able to go in that much number, and it will be just like this one COP. So this was just some of the news that revolved around the COP30 dynamics. And if I formally start, so I would like to welcome our very first trainer, my very special friend who is supporting me till now, and he has indigenous and an immense amount of knowledge on the United Nations and how the United Nations proceeding really work on. So I would like to welcome Dr. Nazakatul Husnain. He is a veterinary doctor by profession, and also he is playing his role as a foreign expectorate to RIFAD Africa, and also he is a special advisor to the Federal Ministry of Water Resources and Sanitation in Nigeria. And apart from this, if I have to tell his one of the most important honors, he represented Pakistan as a delegate in the United Nations Framework Convention on Climate Change COP29, and also he was with me
in the United Nations Convention to Combat Desertification COP16 that happened in Riyadh last year. So he represented Pakistan as a delegate for two COPs in last year. And today, the session that will take place, the training that will take place, the topic is climate diplomacy and the UNFCCC 101, where we will be getting all the knowledge of how climate diplomacy really works and how UNFCCC usually operates. And this is from my side. I would like to welcome Dr. Nazakatul Hasnan. If you will be having any questions, you can ask Dr. Nazakatul Hasnan by raising your hand and opening your mics, or by simply typing in the chat box. And yes, this training will be bilingual, so you may understand all the knowledge perfectly and easily. Over to you, sir. थैंक यू सो मच दनियाल भाई। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। जो आपने बता दिया कुछ ज़्यादा ही बता दिया। वैसे मैं अपना वैसे तारुफ करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेंबर्स। वैसे सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ बता दूं जो मैं बताता होता हूँ। ना किसी की आंख का नूर हूँ मैं, ना किसी के दिल का करार हूँ मैं, जो किसी के काम न आ सके वो एक मुश्ते गुबार हूँ मैं, न दवाए दर्दे जिगर हूँ मैं, न किसी की मीठी नज़र हूँ मैं, न इधर हूँ मैं न उधर हूँ मैं। तारुफ तो मेरा यही है, लेकिन दानियाल भाई ने चलो कुछ ज़्यादा ही बता दिया। आई एम सो थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल दानियाल भाई। सो गाइस, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फर्दर डिस्कशन, सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। सो एज फार एज माय इंट्रोडक्शन इज कंसर्न्ड, माय नेम इज डॉक्टर नज़ाकतुल हसनैन। By profession, I am a veterinary doctor, like specialized in the zoo animal practice, wildlife conservation and wildlife breeding। तो वाइल्ड लाइफ के जितने इलाज मामलात होते हैं, जानवरों के ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, उनके ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो बट बाय प्रोफेशन तो मैं वो देखता हूँ। आई डिड माई DVM डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर। तो उससे पहले आई वर्क इन दुबई जू एंड एक्वेरियम इन यूएई। दुबई जू में भी काम वगैरह करता रहा हूँ। सो nowadays I am working with the government of Nigeria as a foreign inspectorate in their one project on use and maintenance of wash facilities in urban and rural areas and IDP camps all across Nigeria। एंड को 150 से 148 स्टूडेंट्स तक सिमुलेट करते हैं। उनको फिर इजिप्ट में वगैरह बुलाते हैं वहाँ पे टू डिस्कस द क्लाइमेट नेगोशिएशन प्रोसेस एंड वी विल फर्दर शॉर्टलिस्ट 25 स्टूडेंट्स टू अटेंड द रियल कॉप लाइक दिस ईयर इन ब्राज़ील, नेक्स्ट ईयर इन मोस्ट प्रोबेबली इन एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो फिर हम करते हैं। तो आई एम आल्सो वर्किंग विद द सिलिकॉन वैली इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट चेंज स्विच देयर इन यूएसए एज अ क्लाइमेट एडवाइजर। तो इस तरीके से साथ कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह बेस करते रहते हैं। नाउ अडेज आई एम फोकस्ड ऑन द नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एंड मिटिगेशन ऑफ द अर्बन हीटिंग आइसलैंड इफेक्ट्स। क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर, जिस तरीके से हम ये ग्रीन स्ट्रक्चर को खत्म करके हम एक वो ग्रे स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं कि बिल्डिंग्स खड़ी करते जा रहे हैं हम, मैं तो उनको कब्रें कहता हूँ कि वर्टिकल कब्रें हम उठाते जा रहे हैं। तो वो इस तरीके से उसकी वजह से जो कंक्रीट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज आर सो कॉल्ड हीटिंग हॉटस्पॉट्स। तो जो हीटिंग हॉटस्पॉट एरियाज बन रहे हैं इसकी मिटिगेशन के ऊपर आजकल काम कर रहा हूँ एंड मेनली फोकस्ड ऑन द कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम द रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर and the afforestation projects, afforestation and reforestation projects। So thank you so much all guys। So before going for the our technical discussion regarding the UNFCCC framework and the climate diplomacy, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि what actually climate change is। Everyone is listening about the climate change, climate change is urgent and present reality। तो चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड ये करना चाहिए कि एक्चुअली क्लाइमेट चेंज है क्या। बेसिकली ये है कि सबसे पहले इसकी जो बेस है ना वो है ग्रीन हाउस गैसेज। सॉरी, ग्रीन हाउस गैसेज एक्चुअली 4 गैसेज, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गाड़ियों के धुएं से निकलती है,
नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि ये फर्टिलाइजर्स के यूज से निकलती है जो हम फसलों में यूज करते हैं। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि मशीनरी से निकलती है। उसके अलावा मीथेन है जो कि ग्रीन मार्केट्स का वेस्ट होता है, जिस तरह के सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, फ्रूट्स के गलना सड़ना हो गया, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जब डेड एंड डिके होता है तो उससे जो गैस निकलती है दैट्स सो कॉल्ड मीथेन, विच इज 70 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गाड़ियों के धुएं से निकलती है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना इतना ज़रूरी है। बेसिकली ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनका हमारे एटमॉस्फेयर में होना इतना ज़रूरी है कि अगर ये ना हो तो ये ज़िंदगी यहाँ मुमकिन ही नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये ग्रीन सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्टली सनलाइट डायरेक्टली अर्थ की सरफेस को टच नहीं कर सकती, पहली बात तो ये है। तो जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है मेंटेन रखने के लिए ये ग्रीन हाउस गैसेज का एटमॉस्फेयर में होना ज़रूरी है। और एटमॉस्फेयर भी ये नहीं है कि पूरी अर्थ है तो उसका जितना ऊपर हवा वाला एरिया यहाँ ये ग्रीन हाउस गैसेज फैली हुई है, ऐसे नहीं है। ये सिर्फ एटमॉस्फेयर की जो लेयर है जो कि जमीन से कुछ किलोमीटर तक जो लेयर है वो दैट सो कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में इन गैसेज का होना जरूरी है। अगर ये नहीं हो तो अर्थ फ्रीज होकर रह जाए, अर्थ का टेम्परेचर वो मेंटेन ना हो पाए। तो जब ये माहौल में होती हैं तो ये क्या करती हैं, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब आप खुद एक वो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि अगर ये माहौल में ज़्यादा होंगी तो इट मीन्स कि ये ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगी, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी तो अर्थ का टेम्परेचर वार्म होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इट मीन्स कि आपकी हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी, फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से लेकर आपके बच्चों की हेल्थ, उसकी माओ की हेल्थ, और फिर बच्चों का स्कूल में जाना, तो ये सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी। ठीक है। तो अब ये तो है इन ग्रीन हाउस गैसेज की साइंस। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार वो इस तरीके से है, सूरज ज़्यादा गर्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। सूरज कुछ गर्म नहीं हो रहा, ये बेसिकली जो ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ हैं ये सूरज की सनलाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, जिस वजह से ज़मीन गर्म हो रही है। अब उसके एग्जाम्पल फॉर मरकरी है ना, मरकरी ऐसा सैयारा है जो ज़मीन की निस्बत सूरज के ज़्यादा करीब है लेकिन वो ठंडा है। वो अगर इस तरीके से होता तो वो तो सूरज के करीब है, उसको तो ज्यादा गर्म होना चाहिए, वो ठंडा है। और जमीन जो है वो मरकरी से भी दूर है और सूरज से भी ज्यादा दूर है, लेकिन वो गर्म है। उसकी वजह मैंने अब आपको बता दी कि किस वजह से गर्म है। सो दिस इज द मेन बेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये पता होना चाहिए कि आपको जब तक बेस का नहीं पता होगा तो हम उसको लाइक वी विल नॉट बी एबल टू टैकल दी दिस बर्निंग इशू ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये बेसिकली अब फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जहाज उड़ रहा होता है, अब नीचे तो गर्मी होती है, लेकिन जब जहाज जहाँ ऊपर 27,000 28,000 35,000 फुट की बुलंदी पे जब उड़ रहा होता है तो वहां तो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है। हालांकि देखा जाए तो वो तो सूरज के करीब होता है, क्योंकि वो जमीन से तो 37,000 फुट की ज्यादा बुलंदी पे होता है। तो अप टू जहाँ हम है जहाँ जहाज है, देखा जाए तो जहाज तो सूरज के ज्यादा करीब, लेकिन वहाँ क्यों फ्रीजिंग टेम्परेचर है? तो उसकी यही वजह है कि वहाँ ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेज बेसिकली एटमोसफेयर में होती हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रखी हुई है, जिस वजह से यहाँ गर्मी है, लाइफ की एग्जिस्टेंस है, और वहाँ पे नहीं है। तो ये बेसिकली उसकी एक मेन वजह, ये तो बेस थी क्लाइमेट चेंज की, जो कि आपको बताना और समझाना मैं ज़रूरी समझता था बिफोर गोइंग फॉर फर्दर टेक्निकल डिस्कशन। तो अब तो थोड़ा बहुत हम अपनी वो जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि क्योंकि जो मुझे टॉपिक असाइन किया गया है वो क्लाइमेट डिप्लोमेसी एंड यूएनएफसीसीसी फ्रेमवर्क के ऊपर डिस्कशन करनी है। So, like in this presentation, like we will be understanding the global framework for climate action. तो उससे सबसे पहले तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी, आपने हर कहीं नाम सुना होगा, क्लाइमेट डिप्लोमेसी क्लाइमेट डिप्लोमेसी। तो व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, क्लाइमेट डिप्लोमेसी ऐसे ही समझ लें कि आप जितने भी इंटरनेशनल नेगोशिएशंस होती हैं ना, पूरी दुनिया के जो मामलात हैं उनकी जो अपनी नेगोशिएशन है या पॉलिटिकल डायलॉग्स होते हैं, ठीक है, या जो कंट्रीज की आपस में कोऑपरेशन है, इस सारी चीज़ों को यूज करते हुए जो कि एक क्लाइमेट चेंज का एक इशू है उसको टैकल करने को, दैट्स सो कॉल्ड क्लाइमेट डिप्लोमेसी। लाइक in climate diplomacy it is actually the use of international negotiations, so-called political dialogues and cooperation among the countries or nations to address the climate change। और climate change आपको पता है it's not any one individual responsibility, it's our shared responsibility। तो climate change को जब भी टैकल करने की बात होती है we can only टैकल इट थ्रू द कलेक्टिव एक्शन। क्योंकि इस वक्त आपने वो उसका देखा होगा, COP30 इज गोइंग ऑन इन ब्राज़ील। तो आवर फर्स्ट वीक जो है वो आज रात इंशाल्लाह क्लोज हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से 8 घंटे उनका टाइम पीछे है। तो अभी अभी वहाँ COP स्टार्ट हुआ होगा, तो मतलब आज का दिन लास्ट डे, आगे सैटरडे संडे डेफिनेटली ऑफ होगा, तो फिर इस तरीके से वो उनकी चीज़ें चलेंगी। अब आपने वहाँ पे देखा होगा उनका जो इस दफ़ा वो चल रहा है ना,
स्लोगन होता है हर कॉप का एक। अभी इसका जो उनका वो स्लोगन चल रहा है वो म्यूटेरो ग्लोबल है। अब म्यूटेरो मीन कलेक्टिव एंड ग्लोबल मीन सॉरी म्यूटेरो मीन एफर्ट्स एंड ग्लोबल मीन कलेक्टिव, तो इट रेफर्स टू द कलेक्टिव एफर्ट्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज है या क्लाइमेट डिप्लोमेसी है, तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी एक्चुअली मीन्स द यूज ऑफ द पॉलिटिकल डायलॉग्स, इंटरनेशनल नेगोशिएशन, इन सारी चीज़ों को यूज करते हुए जब हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की बात करते हैं वाया कलेक्टिव एक्शन, दैट्स सो कॉल्ड द climate diplomacy. So as far as the purpose of the climate diplomacy is concerned, इसका सेम पर्पस यही हो सकता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट्स हैं उनको बैलेंस किए जाए, जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि 17 एक पायदार तरक्की के मकासद हैं, उनके ऊपर काम किया जाए। और जितनी भी ग्लोबल एक क्लाइमेटिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कंट्रीज की, फॉर एग्जाम्पल एज अ नेशन हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हम वो जो एक एनडीसीज में हमारी मेंशन होती हैं, बहरहाल वो चीज़ें हम लेटर स्टेजेस में डिस्कस करते हैं, तो वो उन चीज़ों को अपनी क्लाइमेटिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर प्रॉपर काम किया जाए। बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज अ ट्रांसबाउंडरी इशू, क्योंकि ये ट्रांसबाउंडरी इशू है, तो ट्रांसबाउंडरी ही इसके लिए एफर्ट्स चाहिए होगी कि लाइक नो नो इवन अ सिंगल कंट्री कैन सॉल्व इट अलोन। तो अकेला तो कोई मुल्क भी नहीं इसको हल कर सकता ना, तो एक्चुअली इट इज़ अ ट्रांसबाउंडरी इशू, तो इसको हल करने के लिए भी हमें कलेक्टिव एफर्ट्स अक्रॉस द ग्लोब एंड बियॉन्ड द बॉर्डर चाहिए होती है, और हमें आउट ऑफ द बॉक्स ज़रा चीज़ों को टैकल करना पड़ता है, क्योंकि ये एक्चुअली इट इज़ द गेम ऑफ द कंट्रोलिंग द ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन एट देयर सोर्स नॉट एट देयर एग्जीक्यूशन। क्योंकि एज अ नेशन मैं अगर आपको बताऊं, एज अ नेशन, क्योंकि एज अ नेशन जो है तो इसको अगर आप क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की बात करते हैं तो ये हमें उसको फोकस है। जो पाकिस्तान का मतलब मैं खुद को देखता होता हूँ ना कि हम एज अ नेशन किस चीज़ का काम करते हैं, हम चीज़ों को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं एट देयर एग्जीक्यूशन नॉट एट देयर सोर्स। जबकि दुनिया पूरी जो है, जब भी कोई कहीं से प्रॉब्लम इरेडिकेट होता है, कहीं से फंदर कोई प्रॉब्लम शुरू होता है या कोई प्रॉब्लम खत्म होता है जो भी है, तो उस प्रॉब्लम को लोग उसके सोर्स पे खत्म करते हैं। फर्दर बीमारी आई है तो बीमारी के पीछे कोई पॉजिटिव एजेंट होगा, एज ए डॉक्टर में अगर उसको देखो तो वो उसमें होता है कि पॉजिटिव एजेंट होगा कोई ना कोई। तो जो पॉजिटिव एजेंट होता है बेसिकली दैट सो कॉल्ड एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंजाई हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें कोई बीमारी भी होगी ना तो हम उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं कि अच्छा यार सर में दर्द है तो सर के दर्द की गोली खा लो, पेन है, हम चीजों को एट देयर एग्जीक्यूशन कंट्रोल करते हैं नॉट एट देयर सोर्स। लेकिन क्लाइमेट चेंज तभी इसको हम वी विल बी एबल टू मिटिगेट और अडेप्ट विद द क्लाइमेट चेंज if we can put our hands and we can put knock on the at their source not at their execution। तो अब इसकी जो मेन अभी क्लाइमेट चेंज का चल रहा है वो पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है। बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट ये 2015 में पेरिस में हुआ था जब कॉप वहाँ पे हो रहा था। तो इट वाज लाइक अ डिप्लोमेटिक सक्सेस, जहाँ पे क्या कहते हैं 196 कंट्रीज जो इसके यूएन फ्लैग के अंडर आते हैं, दे एग्रीड टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 सेल्सियस एमिंग फॉर द 1.5 सेल्सियस। जो इनका 196 ममालिक ने यही तय किया कि जो इनका एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इनको साइंटिफिक डेटा बता रहा है कि 2030 तक या 2050 तक जो है वो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो 2 सेल्सियस तक राइज कर जाएगा। तो इनका यही था कि चलो 2 सेल्सियस तक की राइज करे, उससे ज्यादा बढ़े नहीं, बट स्टिल इन्होंने टारगेट अपना 1.5 किया कि 1.5 तक हम कोशिश करेंगे। लेकिन उससे भी अगर बात हमारे हाथों से निकलने लगी तो 2 सेल्सियस हमारा वो ऐसे समझ लें कि थ्रेश होल्ड है, उससे ज्यादा हम किसी सूरत भी आगे नहीं जाएंगे। अब अगर आप इसकी क्लाइमेट डिप्लोमेसी की अब वो ये कहते हैं हिस्टोरिकल इवेल्युएशन कि ये चीज़ कैसे ऊपर आई, कैसे निकली, तो उसको अगर आप थोड़ा सा वो करने की कोशिश करें तो बेसिकली ये 1972 सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस आई, जिसमें ये एनवायरमेंटल अवेयरनेस का एक माहौल के ऊपर बात करने का कोई जिक्र आया कि हाँ यार माहौल को बचाना भी जरूरी है। बेसिकली तो ये आप देखें कि आज से 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दौर से ही है कि वो उस वक्त भी हुक्म आया कि पानी को ज़ाया नहीं करना है, खुराक को ज़ाया नहीं करना है, उतना उतना ही लो कहते हैं ना थाली में कि ज़ाया ना जाए नाली में। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। वो अब दरिया फुरात के भी किनारे बैठे हों तो पानी को ज़ाया नहीं करें। तो बहरहाल ये चीज़ें जो इस तरीके से थी ना,
लेकिन इन टेक्निकल डिटेल्स और इन द यूएन चार्टर, तो इट वाज फर्स्ट द बर्थ ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंटल अवेयरनेस वाज हैपेंड इन द 1972 एट द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि स्टॉकहोम में हुई थी। तो आफ्टर दैट फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आ गया कि यार अच्छा तरक्की, फिर क्योंकि जब दुनिया तरक्की भी कर रही थी तो उन्होंने कहा यार ये तरक्की करने से माहौल को नुकसान पहुंच रहा है, तो उन्होंने कहा तरक्की करो लेकिन पायदार तरक्की करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो कहते हैं कि आपका जो भी काम हो वो प्लेनेट कॉन्शियस भी हो, पीपल कॉन्शियस भी हो और प्रॉस्पेरिटी ओरिएंटेड भी हो, कि आप ये सिर्फ अपने इंडिविजुअल लेवल पे इसको लेके जाएं। अब देखें कि अगर मैं यहाँ पे कदम उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, तो इट मीन्स इससे क्या ये मेरा जो कदम उठाना है ये प्लेनेट कॉन्शियस है, कि मतलब इस मेरे कदम उठाने से क्या कोई माहौल को नुकसान पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर नहीं पहुंच रहा तो इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो क्या पीपल कॉन्शियस है, क्या ह्यूमन राइट्स को तो कहीं पे डिस्टर्ब नहीं कर रहा, एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा, और प्रोस्पेरिटी ओरिएंटेड होना चाहिए कि किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी लेवल पे लोगों की जिंदगी में खुशहाली ला रहा हो, प्रोस्पेरिटी, इट मस्ट बी प्रोस्पेरिटी ओरिएंटेड। तो 1987 में ये इंट्रोडक्शन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया, जो कि ये एक ब्रंटलैंड रिपोर्ट थी, जिसका उनका डेफिनेट स्लोगन था, आपको पता होगा, आवर कॉमन फ्यूचर। एंड आफ्टर दैट द 1992 में रियो अर्थ समिट आया, जिसमें ये यूएनएफ ट्रिपल सी को अडॉप्ट किया। इट वाज द ऑफिशियल अडॉप्शन ऑफ द यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एंड 1992 के 5 साल बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जब जापान में हुआ, तो उसमें आया कि ये इनका जो इमिशन रिडक्शन का जो टारगेट था, कि मतलब हाँ यार ये हमें जो इमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन है, इसका रिडक्शन का, इट वाज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इमिशन रिडक्शन टारगेट। तो उसके बाद जो भी लेटेस्ट चल रहा है वो 2015 वाला है, ये पेरिस एग्रीमेंट वाला, जिसमें उन्होंने कहा कि उसको टारगेट्स, तो हमने इमिशन रिडक्शन की जो एक लीगली बाइंडिंग वो तो कर ली कि हाँ यार ये हमारे टारगेट्स हैं। उससे पहले उन्होंने फिर उसको कंट्री लेवल पे लेके आए इन द फॉर्म ऑफ एनडीसीज, जिसको कहते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। ये हर कंट्री के अपने एनडीसीज होते हैं, वो सबमिट करवाते हैं यूनाइटेड नेशन को कि हाँ भाई हम अगले 2 सालों में या अगले 3 सालों में हम इन चीज़ों पे काम करेंगे, इस लेवल पे हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही, वो कहते हैं ना कि एक वो क्या कहते हैं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को मैं आपको आसान अल्फाज में आपकी ज़बान में कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग एक कॉम्प्लेक्स में भी ना जाए और इजी आपको एक कॉन्सेप्ट आपके जहन में बन जाए, खाका बन जाए। बाकी ये ओके सौखे नाम जो हैं, ये चीज़ें आपके जहन में वैसे ही आपको याद हो ही जाएंगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली। तो जितने भी ये माइलस्टोन्स कवर किए जा रहे थे, एंड ईच माइलस्टोन वाज अल्टीमेटली रिफ्लेक्टिंग द लाइक, it reflects that there is a growing diplomatic consensus और साइंटिफिक अर्जेंसी को लेके ये लोग जिस तरीके से जितने भी माइलस्टोन हो रहे हैं, तो इट मींस के लोगों के दरमियान या कंट्रीज के दरमियान या नेशंस के दरमियान या पार्टीज के दरमियान एक कंसेंसस बिल्ड हो रहा है ना। तो अब अगर हम यूएनएफ ट्रिपल सी की बात करें, यूएनएफ ट्रिपल सी, इट इज एक्चुअली अ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज व्हिच वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन द रियो अर्थ समिट इन 1992, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो बेसिकली इट वाज दी लाइक, सो आप इसको इस तरीके से कह रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, जिस तरीके से कोई भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी होती है, जो कि 1992 में इस्टेब्लिश की गई। और इसका बेसिकली जो काम था ना यूएनएफ ट्रिपल सी का, जो अभी भी है, कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल एफर्ट्स के ऊपर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं टू टैकल द क्लाइमेट चेंज, कि हर कंट्रीज की तरफ से क्या एफर्ट्स होंगी कि वो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में क्या रोल अदा करेंगे। और इसी वजह से ये ऐसे समझ लें एक पंचायत बिठाते हैं साल में एक दफ़ा, जिसमें ये पूरे कंट्रीज को बिठाते हैं और बताते हैं अभी बताओ आपने मॉल को नुकसान पहुंचाया, आप क्या दोगे, आपको नुकसान पहुंचा, ये बंदा आपको पैसे देगा, और आप किस तरीके से वो नुकसान को टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो ये इसको बेसिकली कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल एफर्ट्स को ये पुट करते हैं टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। तो इसका इनका अगर आप वो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स वगैरह देखें, तो देयर वाज द कोर ऑब्जेक्टिव वाज द लाइक स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, के जो ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन जो है उसको वो एक माहौल के अंदर स्टेबलाइज किया जाए, उसकी एक लिमिट की जाए कि इससे आगे नहीं बढ़े। उसकी जो एक एटमॉस्फेयर के अंदर जो एक ऐसे समझ लें सो कॉल्ड द कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को एक स्टेबलाइज किया जाए। और दूसरा ये था कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज जो है ये विद इन द क्लाइमेट सिस्टम उसको प्रिवेंट किया जाए। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बेसिकली होती हैं कि कोई भी मैन मेड या ह्यूमन मेड एक्टिविटीज, क्या फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन,
कि अब ह्यूमन मेड जो एक अच्छा आपका क्लाइमेटिक सिस्टम बना हुआ है, दरख्त लगे हुए हैं, और हम उसको दरख्त को काटना शुरू कर दें, तो दैट सो कॉल्ड द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। हम एक जगह पे ग्रीन स्ट्रक्चर को खत्म करके वहाँ ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। ठीक है, हम सोलराइजेशन को यूज़ करने के बजाय हम ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी पे यूज चले जाएं। अब ये जो हम ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं जो वापडा से आती है, दैट्स ये रीन्यूएबल तो नहीं है, ये तो नॉन रीन्यूएबल है। ये पीछे कोल बेस्ड पावर प्लांट से आती है, वहाँ कोयला जलता है। अब कोयला जलता है जिससे बिजली पैदा होती है, तो वो धुआं छोड़ता है। तो ये बेसिकली इसका ये था कि एक तो इनका ये था कि ग्रीन हाउस गैसेज की जो एक कंसंट्रेशन है उसको एटमॉस्फेयर में स्टेबलाइज किया जाए, और दूसरा ये था कि टू प्रिवेंट द लाइक डेंजरस एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज इंटरफेरेंसेस विद इन द क्लाइमेट सिस्टम। और थर्ड चीज यही थी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि तरक्की करो लेकिन पायदार तरक्की करो, और पायदार तरक्की मैं पहले बता चुका हूँ कि वो क्या है, कि योर ईच स्टेप शुड बी प्लेनेट कॉन्शियस, पीपल कॉन्शियस एंड प्रॉस्पेरिटी ओरिएंटेड। तो ये उसका होना चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करो, और जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, कि जो चीजें लगी हुई हैं वो अगर उसमें कोई कुछ ऐड नहीं करो तो उसको खराब भी नहीं करो। एटलीस्ट वो चीजें इतनी इनफ है कि वो आपको एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकती है, नेचुरल कूलिंग प्रोवाइड कर सकती हैं। अब बेफाबल दरख्त माहौल में खड़ा हुआ है, दरख्त हमें तो लगता है कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन आप कभी फील करें, कभी धूप से नीचे छांव में जाए ना, वाज़े फर्क फील होता है कि हाँ यार यहाँ नेचुरल कूलिंग हो रही है। अब एक दरख्त जो है वो 4 एसी के बराबर ठंडक पैदा करता है, लेकिन वो ठंडक हमें फील फिर भी होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फील नहीं होती जितनी एसी की होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट में जा रहा है। और एक एक एसी जो है आपका वो 12 बाय 12 के कमरे में जा रहा है। तो इट मीन्स कि वो एक दरख्त भी 4 एसी के बराबर ठंडक पैदा कर रहा होता है, लेकिन वो आपके एनवायरनमेंट को, आपके एटमॉस्फेयर को नेचुरली कूल डाउन कर रहा होता है, और आपके एनवायरनमेंट से जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और ग्रीन हाउस गैसेज को कैप्चर कर रहा होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो ये असल इसको कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। हम सॉल्यूशंस की तरफ तो गए, सॉल्यूशंस की तरफ किस तरीके से गए, फॉर क्लाइमेट, इफ द क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग आउटसाइड, तो हमने क्या कर लिया, हमने अंदर एसी लगा लिया, हमने कहा लो जी भाई हमने तो क्लाइमेट चेंज को टैकल कर लिया। ऐसे नहीं होता। सो हमें जाना चाहिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ, कि नेचर हमें क्या देती है, इसको एनबीएस कहते हैं, नेचर बेस्ड, नेचर हमें क्या देती है इस इशू को टैकल करने के लिए, क्या हमें हल देती है। लेकिन हमने एसी लगा लिया अंदर, तो चलो ठंडक हो गई। दूसरा वो इकोनॉमिकली वायबल भी नहीं है, सोशली भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और दूसरा उसके आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स देख लें कि वो कितने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज करें, जो कि फिर अल्टीमेटली एक ग्रीन हाउस गैस है, जिस वजह से फिर आपका टेम्परेचर वार्म होगा। ठीक है, आप तो अंदर ठंड में बैठ जाओगे, जो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, अब नेचुरल डिजास्टर आने लग जाएंगे। तो वो फिर बहरहाल उसके ऊपर एक बहुत लंबी डिबेट है। तो अगर आप इसका यूएनएफ ट्रिपल सी का आप एक स्ट्रक्चर देखें ना, ये बेसिकली इसकी एक इसका वो दैट सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट्स, इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट्स जो इसके हैं वो बेसिकली इसकी जो टॉप लेवल पे होती है वो कॉप होता है, जो कि अभी हो रहा है, COP30 अभी हो रहा है। तो इस मीन के ये कॉप की 30वीं मीटिंग है। तो ये पिछले 30 साल से कंटिन्यूसली चलता आ रहा है, और उससे पहले COP-1 भी हुआ था और COP-2 भी हुआ था। तो इट मीन्स कि अभी 32 साल हो चुके हैं। COP1 से तो ये लीगली चल रहे हैं ना। तो हम एक ऐसे बंदे से भी मिले थे जो कि उससे मैंने पूछा कि आप कॉप कब से ज्वाइन कर रहे हो, मुझे बोल रहा है आई एम ज्वाइनिंग कॉप फ्रॉम द COP-2। तो मैंने कहा ये -2 किया, तो उसने फिर मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मतलब ये COP-2 भी है। तो बेसिकली कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको हम कहते हैं पार्टी रेफर्स टू वन कंट्री। तो ये यूनाइटेड नेशन की चार्टर में जितने मतलब कंट्रीज आते हैं 198 हैं, 196 हैं, जो भी है, तो दैट्स सो कॉल्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि ये हर साल करवाते हैं, जो कि विच इज़ अ ओनली डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो कि एनुअली बैठती है, एक बैठक करते हैं जिसमें अपने अपने गोल्स सेट करते हैं, और अगले साल के लिए अपना रोड मैप तैयार करते हैं कि हमें अगले साल के लिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या काम करना है। एंड आफ्टर दैट देयर आर दी सब्सिडायरी बॉडीज, सब्सिडरी बॉडीज। अब सब्सिडरी बॉडीज दो हैं, एक इनकी एसबीआई होती है और एक एसबीएसटीए होती है। जो एसबीएसटीए है दैट सो कॉल्ड दी सब्सिडरी बॉडीज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस होती है, जो कि इनको वो आप समझ लें कि जो कॉप होती है, जो मेन कंट्रीज हैं, उनको एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल उसको मशवरे देते हैं कि हाँ यार साइंटिफिक बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च बेस पे बताते हैं कि हाँ क्लाइमेट चेंज इस तरीके से होगी, इतना नुकसान होगा अगर इसको नहीं कंट्रोल करेंगे। वो जिस तरह से एक प्रोडिक्शन आ रही थी कि अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो 2030 तक पानी खत्म हो जाएगा, ये
हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी लाहौर में भी हम देखें, वो एक क्लाइमेट क्लॉक भी उन्होंने लगाए कि वो बता रहे हैं कि इतने साल, इतने महीने, इतने घंटे, इतने मिनट्स के बाद ये दुनिया का पानी खत्म हो जाएगा, इस तरीके का ना। वो एक मतलब थीमेटिक सा चीज़ें आपके जहन में क्रिएट करें, ताकि एक बंदे के दिल में वो खौफ पैदा हो और वो उन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करे। तो ये SBSTA होती है, और फिर SBI होती है, जो कि विच लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, जो कि SBI होती है। उसके बाद इनका UN का एक सेक्रेटरीट है, जो कि बॉन में है, जर्मनी में। ये हर साल बेसिकली वहाँ SB के नाम से सब्सिडरी बॉडीज की मीटिंग होती है बिफोर द रियल कॉप, क्योंकि अभी ये COP30 हो रहा है, तो इससे पहले जून में ये मीटिंग करते होते हैं। SB मीटिंग उसको कहते हैं। अभी SB62 हुई थी, तो सब्सिडरी बॉडीज की मीटिंग करते हैं, उसमें फाइनल करते हैं, और फिर ये रियल कॉप की तरफ जाते हैं। अभी ये COP30 क्लोज होगा तो उसके बाद फिर सब्सिडरी बॉडीज की मीटिंग होगी इन जून, और फिर COP31 होगा। मतलब COP से पहले वो सब्सिडरी बॉडीज की मीटिंग होती है, तो वो इनके UNFCCC के सेक्रेटरीट में होती है, जो कि विच इज बेस्ड इन दी बॉन, जर्मनी। तो ये बेसिकली सेक्रेटरीट का काम होता है कि ये इनको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल सपोर्ट, क्योंकि आपको पता है जो हेड ऑफिस होता है उसका यही काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में या टेक्निकली आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की इंस्टीट्यूट तो मैंने आपको बता दिए, COP है, फिर सब्सिडरी बॉडीज हैं, उसमें SBSTA है, जो कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस देती है, और फिर SBI है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन को लो and after that there are the some technical body. Basically is the intergovernmental panel on climate change, जो कि आपको इश्यूज की साइंटिफिक असेसमेंट बताते हैं। और उसके बाद GCF है, जो कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जिसको हम कहते हैं, जो कि क्लाइमेट अडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल आपको अडेप्टेशन करनी है या मिटिगेशन करनी है। तो ये भी दो टर्म्स होती हैं, क्लाइमेट में यूज होती है। आपको आइडिया होगा कि क्लाइमेट मिटिगेशन होती है किसी भी चीज़ का खात्मा कर दो, फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज हो रही है उसको होने ही नहीं दो, ये है मिटिगेशन। अडेप्टेशन ये होती है कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसको हम आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप अपने आप को या अपने लाइफस्टाइल को इस तरीके से अडेप्ट कर लो कि आपके ऊपर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये बेसिकली दो टर्म्स होती हैं। तो ये इसकी दो टेक्निकल बॉडीज, वन इज द IPCC, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, एंड द सेकंड वन इज द GCF, व्हिच प्रोवाइड द फंड्स फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। तो अगर इसके आप इनके एग्रीमेंट्स देखो, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें इन्होंने इमिशन टारगेट्स फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज के लिए वो इन्होंने किए कि आप अपने आपकी इमिशन को रिड्यूस करो। उसके बाद एक इनके वो हुई थी, हाँ क्या कहते हैं, दोहा अमेंडमेंट हुई थी 2012 में, ठीक है। उसके बाद 2015 में पेरिस एग्रीमेंट, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है। तो फर्दर मैं उसके आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो इनका क्योटो प्रोटोकॉल जापान से रिलीज हुआ था, उसमें जो यूरोप था ना, उसने कमिट किया कि वो अपनी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको 8% तक रिड्यूस करेंगे, ठीक है, बाय 2012। तो ये इनकी एक एग्जांपल थी, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल की आप सक्सेस स्टोरी भी समझ लें। और अंडर द पेरिस एग्रीमेंट जो है, हर कंट्री ने अपने ऑन NDCs सेट किए हुए हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब जिस तरह से पाकिस्तान के NDCs क्या हैं, पाकिस्तान ने प्लेज किया हुआ है, एक होता है प्लेज करना और एक होता है डिलीवर करना। ये भी दो दो टर्म्स होती हैं इसमें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क में यूज होती है। प्लेज रेफर्स टू कि एक बंदा, फॉर एग्जाम्पल हम किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और आप मुझे झूठा साबित कर रहे हो, मैं प्लेज करता हूँ कि मैं आपको $1 बिलियन दूंगा, ठीक है। अब मैंने ये वो उसको प्लेज कर दिया कि हाँ मैंने $1 बिलियन दूंगा। अगर मैं नहीं देता तो इट मीन्स कि ये डिलीवर नहीं हुआ, जबकि मैंने प्लेज किया था कि दूंगा, लेकिन अगर दे देता तो इट मीन्स कि ये डिलीवर भी हो गया। तो ये दो टर्म्स होती हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें पाकिस्तान के जो NDCs है, इसमें पाकिस्तान ने प्लेज किया हुआ कि पाकिस्तान विल रिड्यूस इट्स 60% इमिशन बाय 2030। तो इसमें वो ब्रैकेट में आप वो कभी NDC देखें तो उसमें ये भी लिखा हुआ है, कंडीशनल टू फाइनेंस, कि एज पर फाइनेंस पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान को पीछे से फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता तो पाकिस्तान इंशाल्लाह अपनी 60% इमिशन रिडक्शन करेगा। कि जो हमारी तरफ से, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से जो कार्बन इमिशन हो रही हैं, हमारी इंडस्ट्री से जो हो रही हैं, जो बड़ी बड़ी हाई मीटिंग इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, उसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर से हो रही है, फिर हमारी ये लाइफ स्टॉक से, जानवरों के पालने से जो एक इमिशन होती है, तो ये इसको पाकिस्तान रिड्यूस करेगा। अब अगर UNFCCC के कुछ बेसिकली इनके कोर प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उसको हम कहते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, और उसमें ये होता है कि
बेसिकली तीन प्रिंसिपल्स है। वन इज द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, सेकंड वन इज द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, जिसको CBDR कहते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। देन द थर्ड वन इज द राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लाइक जितनी भी क्लाइमेटिक पॉलिसीज हैं, ये दे डोंट हिंडर द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कि ये ना हो कि कोई आप ऐसी पॉलिसी बना दो और अगला बंदा वो जो उसकी एक मुआशी तरक्की है वो भी ना कर सके। तो इनको वो हिंडर नहीं करना चाहिए टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, स्पेशली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, कि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं, जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, ये दो ये भी हैं, ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ रेफर्स टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, और ग्लोबल साउथ रेफर्स टू द डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग नेशंस, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो वी फॉल इन द ग्लोबल साउथ। तो ये जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल होते हैं, ये होता है कि जो साइंटिफिक सर्टेनिटी है, कि वो कहीं भी फॉर एक चीज़ में आप फॉर आप ये देखें कि कोई भी आप क्लाइमेट के ऊपर कोई रिसर्च करवा रहे हैं, तो उसमें जितनी एक साइंटिफिक उसकी एक बेस होती है किसी भी चीज़ की, कि हाँ यार ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि यहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल में ये है कि कोई भी अगर साइंटिफिक जो उसकी यकीनी है, जो सर्टेनिटी है, अगर उसकी कमी हो भी सही, तो इट शुड नॉट डिले एक्शन। एक्शन मस्ट बी प्रोफाउंड एंड इमीडिएट। तो जो एक्शन है हमारा वो वाज़ेह होना चाहिए और मस्ट बी इमीडिएट। हमें उसके लिए कोई वेट नहीं करना चाहिए कि हाँ यार कहीं से कोई वो चीज़ें आएंगी, पैसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तो मैं कुछ करूंगा, अदरवाइज मैं तो फिर बैठा हुआ हूँ, बिकॉज इट्स अवर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी जो है उसके अगर आप वो निगोशिएशन एरिनाज को देखें, तो उसमें ये कॉप समिट्स होते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें निगोशिएट करते हैं। फिर G7 और G20 के क्लाइमेटिक सेशन होते हैं। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की डिबेट्स होती हैं। उसके बाद फिर रीजनल क्लाइमेटिक डायलॉग्स होते हैं, जिस तरह ये अभी बाकू क्लाइमेट वीक हुआ है, बाकू क्लाइमेट एक्शन वीक हुआ है, इस तरीके से अफ्रीका में क्लाइमेटिक वीक्स वगैरह होते हैं। तो ये बेसिकली इसका निगोशिएशन एरिनाज हैं। और डिप्लोमेसी के जो ट्रैक्स हैं ना, वो बेसिकली चार चीज़ों के ऊपर डिप्लोमेसी जो है फॉलो कर रही होती है। उसमें एक होती है मिटिगेशन डिप्लोमेसी। ये मिटिगेशन में हम कार्बन प्राइसिंग और एनर्जी ट्रांजिशन को देख रहे होते हैं। उसके अलावा अडेप्टेशन डिप्लोमेसी, जिसमें लोगों में रेजिलियंस बिल्ड हो और लॉस एंड डैमेज के ऊपर काम हो, उसको अडेप्टेशन डिप्लोमेसी कहते हैं। थर्ड वन इज दी फाइनेंस डिप्लोमेसी, जिसमें हम फंड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड्स हो गया, डेट स्वैप्स हो गए, कार्बन क्रेडिट्स हो गए, जिसके ऊपर मैं काम करूँ फिर बताता हूँ ये क्या होते हैं। फिर टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी हो गई, जिसमें उसमें ये हो कि उनको आप उसकी जो टेक्नोलॉजिकली उसमें इंटरवेंशन करें, वो इस तरीके से करें कि लो कार्बन इनोवेशन की तरफ जाए। कि जिसमें इसके पुराने एसी होते थे उनकी ज़्यादा कार्बन इमिशन होती है, अब जो नए आ गए हैं उनकी कम है, तो उनको क्लाइमेट फ्रेंडली भी कहते हैं या एनर्जी एफिशिएंट भी कहते हैं। तो एक तो उनकी अपनी मिशन है, एक वो होता है कि वो कितनी बिजली कंज्यूम कर रहे हैं जो कि ग्रिड से आ रही है, तो वो भी उसकी भी एक मिशन होती है। तो अगर एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेज आपके घर में लगी हुई हैं, तो उनका भी एक वो फायदा होता है। अब बेसिकली जो इसमें सबसे ज्यादा ये डेवलपिंग नेशंस जो है ना, इसको ज्यादा देखते हैं। तो वाई डेवलपिंग नेशंस मैटर? बिकॉज द डेवलपिंग नेशंस मैटर, दे आर द होम टू द 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। लेकिन इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो इनकी हिस्टोरिकल कार्बन इमिशन है, विच इज लेस देन 20%। अब एक ऐसी फल ऐसा समझ लें कि एक दुनिया को अगर हम दो कमरों में लें, तो एक कमरा है जिसमें दुनिया की 80% आबादी रहती है, लेकिन माहौल को नुकसान पहुंचाने में उनका 20% रोल है। और एक साइड पे दुनिया की 20% आबादी रहती है, वहां उनको माहौल को नुकसान पहुंचाने में उनका 80% रोल है। सो आफ्टर ऑल दैट कि उनका रोल भी नहीं है, लेकिन बट स्टिल दे आर द मोस्ट वल्नरेबल, बिकॉज जिस तरीके से पाकिस्तान है कि पाकिस्तान इज मोस्ट वल्नरेबल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी में पाकिस्तान है, टॉप 10 में आता है। तो इसमें यह कि उनको अब डेवलपिंग नेशंस को फ्लड्स भी आते हैं, खुशहालियाँ भी आती हैं। अभी आपको पता है ईरान का बहुत बड़ा मसला चल रहा है, फूड इनसिक्योरिटी का मसला आता है, क्योंकि जब आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, तो फूड तो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से आनी है। और लाइव स्टॉक सेक्टर भी जो है, ये एग्रीकल्चर का सब सेक्टर है, एग्रीकल्चर एक्चुअली इज द मेन सेक्टर। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब पाकिस्तान का रोल अगर आप देखें, तो जो COP27 हुआ था, विच हैपेंड इन शर्म शेख इजिप्ट इन 2022, तो उसमें पाकिस्तान severely advocated फॉर द लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के भी फ्लड्स आए थे, तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ी इसके ऊपर एडवोकेसी की, एंड पाकिस्तान बिकेम अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर द क्लाइमेट जस्टिस।
तो आप भी इसके बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, 2010 में जीसीएफ इस्टेब्लिश हुआ, जिसका में सोल पर्पस यही था कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को अडेप्टेशन और मिटिगेशन में सपोर्ट करे, जो मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद फिर 2001 में अडेप्टेशन फंड आया, जो कि विच वाज फाइनेंस्ड बाय द सीडीएम प्रोजेक्ट। सीडीएम एक्चुअली रेफर्स टू द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो ये जितना भी कार्बन प्राइसिंग का मैकेनिज्म होता है कि ये कहते हैं कि जो बंदा माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है उसके ऊपर एक टैक्स लगना चाहिए, दैट्स सो कॉल्ड द कार्बन टैक्स। तो ये इट वाज द फाइनेंस्ड बाय द सीडीएम प्रोजेक्ट। 1991 में जीईएफ आया, जो जैफ प्रोजेक्ट था, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जो कि यूएनडीपी पाकिस्तान ने यहाँ पाकिस्तान में भी स्टार्ट किया। इट वाज मेंट फॉर फाइनेंसिंग द बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट केमिकल्स। उसके बाद फिर 2022 में ये आया लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि वहाँ से इजिप्ट से आया। और जिसमें ये था कि वो जो कंट्रीज हैं जो कि विच आर बीइंग इम्पैक्टेड बाय द इरिवर्सिबल इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, तो उनको कंपनसेट किया जाए। लॉस एंड डैमेज फंड था कि फर्ज पाकिस्तान का सैलाब की वजह से नुकसान आया तो पाकिस्तान को वो कंपनसेट किया जाए उन सारी चीज़ों में। तो उसमें उसकी एक सिंपल एग्जांपल ये थी कि आपको पता है ये यूएनडीपी ने प्रोजेक्ट किया था ग्लोफ 2 के नाम से, GLOF, ग्लोफ 2, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो which was being funded by the Green Climate Fund, and it was meant for the reducing the glacier lake outburst flood risk। क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वो इकट्ठा इतना फ्लड आता है, दैट्स सो कॉल्ड फ्लैश फ्लडिंग। तो इतना फ्लड आता है कि वो कम्युनिटी जितनी मर्जी रिजिलियंट हो उससे उससे नहीं बच पाती और उसके बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो ये बेसिकली है। बाकी इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जिस तरीके से आप एनडीसीज हैं उसमें कोई आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। नॉर्थ और साउथ के एक डिवाइड है। अब जो नॉर्थ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंस देना, वो फाइनेंस नहीं देते। साउथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि वो प्रॉपर काम करे, वो काम नहीं करते। उनको पैसा वो दे भी सही तो वो फिर भी नहीं काम करते। तो ये इस तरीके से कुछ बैरियर्स हैं, जिस तरीके से ये कुछ जियो पोलिटिकल टेंशन आप इसको कह सकते हैं। उसकी अच्छी एग्जांपल आपके सामने है, चाइना यूएस ट्रेड डिस्प्यूट है, ठीक है। फिर प्लेज वर्सेस डिलीवरी गैप भी है कि कुछ लोग प्लेज कर देते हैं जब इवेंट्स में बैठे, तब जिस तरह कॉप में बैठे हुए वहाँ प्लेज कर देते हैं फिर डिलीवर नहीं करते, तो प्लेज डिलीवरी गैप भी है। इन क्लाइमेट फाइनेंस जिस तरीके से वो $100 बिलियन का गोल अभी तक अचीव नहीं हो पाया। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं। बाकी पाकिस्तान की एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है कॉप्स में, आर्टिकल 6 के डायलॉग्स में। फिर पाकिस्तान आल्सो पार्टनर विद द जीसीएफ, यूएनडीपी, यूएनईपी एंड वर्ल्ड बैंक। फिर पाकिस्तान का नेशनल अडेप्टेशन प्लान एंड नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी आल्सो भी रेडी है। फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर और कार्बन मार्केट्स की पॉलिसी गाइडलाइंस भी पाकिस्तान ने दी। पाकिस्तान इज वर्किंग आउट ऑफ द बॉक्स टू टैकल द क्लाइमेट चेंज, लेकिन असल में कॉन्सिक्वेंसेज सीवियर हैं। फिर वो कहते हैं ना कि मनी मेक्स द मेयर मूव, तो फिर पैसे से ही हर काम होता है। तो कुछ उसमें भी इंस्टीट्यूशनल साइलोज भी हैं, कुछ लैक ऑफ टेक्निकल कैपेसिटी भी है, जिस वजह से वो हम अभी उन गोल्स को मेट नहीं कर पा रहे। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम सब जो यंग सोच हैं हम कुछ ना कुछ करने के काबिल हो जाएंगे। So that was all from my side. If any sort of question from your side, you are more than welcome. Thank you so much. Firstly, if I was there physically और अगर हम लोग सारे के सारे फिजिकल सेशन कर रहे होते तो मैं आपको एक बड़ी ज़ोरदार तालियों से आपका शुक्रिया अदा करता नज़ाकत भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर द informative session. Literally it opened इवन माई की कॉन्सेप्ट, मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जिस तरीके से मुझे नहीं पता था कॉप -2 और -1 का, बिल्कुल आपकी तरह। तो इट्स रियली ग्रेट टू नो फ्रॉम यू। सो फर्स्टली जो आपके अपने पार्टिसिपेंट्स के सवाल हैं, प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड एंड ओपन योर माइक। मैं हाईली इंकरेज करूंगा आप सभी को कि आप लोग प्लीज चैट से ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग माइक पर नज़ाकत भाई से सवाल करें। इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा एंड इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एट इंटरनेशनल फोरम्स, आपका कॉन्फिडेंस इसी तरीके से बूस्ट अप होगा। तो ओवर टू यू। Yes, Miss Kinza, you have raised your hand. Please feel free to open your mic and ask your question. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम मैडम। First of all, I would like to thank Mr. Daniel Kamal and Dr. Nazakat and the entire team of Skrify for holding these sessions.
जिनसे मतलब हमारा भी काफ़ी फ़ायदा होता है एंड वी कैन डिस्कस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज़ कि आजकल जो ट्रम्प का ड्रिलिंग प्लान है, लाइक इन द अलास्का एंड नाउ इन द कैलिफोर्निया कोस्ट, व्हिच विल लाइक इम्पैक्ट द वाइल्ड लाइफ अलॉट, और उसके बहुत से लाइक कहते हैं कि देयर विल बी वेरी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो आई वांटेड टू नो कि उसको इज देयर एनीथिंग बीइंग डन टू लाइक स्टॉप इट? कोई ऐसी जो जितनी पावरफुल एजेंसीज हैं यूएन की होगी, जैसे कि यूएनईपी है या कोई भी अदर एजेंसी, लाइक इज देयर एनी एक्शन और एनी डिस्कशंस और एनीथिंग बीइंग डन कि इनके प्लान जो है लाइक यू नो like to stop him or like do anything, sorry, change his mind or something like that? जी मैडम, थैंक यू सो मच। आपका क्वेश्चन वो है जो कि हम जो क्लाइमेट के कुछ लोग हैं जो उनमें सबसे ज्यादा जिस क्वेश्चन के ऊपर हम गौर फिक्र भी करते हैं और बार बार हंसते भी हैं, ये आपका क्वेश्चन उसके ऊपर है। अब सबसे पहले तो ट्रम्प का जो आपका ड्रिलिंग प्लान है इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी क्लाइमेट डिप्लोमेसी भी है और क्लाइमेट पॉलिसी भी है। बेसिकली ट्रम्प जो है ना वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, हम जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, वो कहता है क्लाइमेट चेंज इज अ नेचुरल प्रोसेस, लेट इट हैपन। वो कहता है ये कुदरती प्रोसेस है, जिस तरह कोई भी कुदरती प्रोसेस, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, कोई भी चीज मरती है तो वो गलती से सड़ती है, फिर वो जमीन की बाकियात का हिस्सा बन जाती है, अर्थ रेमनेट्स में चली जाती है। तो वो यही समझता है, वो कहता है क्लाइमेट चेंज इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड लेट इट हैपन। अब इसका ये है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है इसने आते ही सबसे पहले इनका यही है कि इसकी हम मैसिव एक्सपेंशन करेंगे ऑफ फेडरल ड्रिलिंग, जिसमें इन्होंने आते ही इन्होंने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन्होंने जो ऑयल एंड गैस के जो उसकी जो लीजिंग थी अक्रॉस मिलियंस ऑफ एकर्स, वो इन्होंने उसकी उसकी जो है उसको रीओपन कर दिया। और क्या कहते हैं जो कि वहाँ पर वाटर था जो कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन था उसने जो रिस्ट्रिक्ट किया था, इन्होंने इसको दोबारा रीओपन किया। तो एज पर द रिपोर्ट अगर आप इसको देखें तो दिस कुड इन्वॉल्व अप टू 625 मिलियन एकर्स ऑफ द फेडरल वाटर्स बीइंग ओपन फॉर द ड्रिलिंग। तो इसमें वो चीज़ें अभी कर रहे हैं। अब इसको देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन क्या कर सकती है, वो एक इनको थ्रू डिफरेंट रिसर्च इनके लोगों को समझा के, अभी जिस तरीके से मुझे दानियाल भाई बता रहे थे, मुझे नहीं पता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिफोर द मीटिंग स्टार्ट मुझे कह रहे थे कि मतलब जो अभी COP30 के प्रेसिडेंट लुलू हैं उन्होंने खुद कहा है कि मतलब वी विल नॉट लिसन टू द क्लाइमेट डिनायर्स, कि जो लोग क्लाइमेट चेंज को डिनाई कर रहे हैं हम उनकी नहीं सुनेंगे, हम तो अपना वो काम करेंगे। अब एक बंदे से क्या होगा, मतलब वो अब बात तो वही है कि बात तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की है, एवरी एक्शन काउंट एंड एवरी फुट स्टेप मैटर्स। लेकिन ये है कि वो अपनी वो एक उसका वो एक मेंटली वो जरा स्टंटेड सा आदमी है, उसको कोई समझ आती नहीं है, लेकिन वो बस लगा हुआ है। लेकिन एज ए टेक्निकल हम उसको वो देख रहे हैं। लेकिन वो इसकी जो जितने भी इसकी जो ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट है इस एक्चुअली टारगेटिंग द रोल बैक प्रोटेक्शन इन द लार्ज एरियाज। तो जो आप अलास्का का जिस तरीके से कह रही हैं वहाँ आप इसको जरा सर्च कीजिएगा, ब्यूरो ऑफ लैंड मैनेजमेंट एक बिल नेम है जो कि इस चीज़ को टारगेट कर रही है ताकि उसकी जो रोल बैक उसकी जो प्रोटेक्शन हैं जो लार्ज एरियाज में वहाँ पे लोगों के किया जाए। क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा बहुत मैटर करती है, जहाँ पे ये एक्टिविटीज़ की जा रही थी, जिस तरह एक्स्ट्रा माइनिंग की जा रही हो, ऑयल ड्रिलिंग की जा रही हो, यहाँ पे ये चीज़ें की जा रही हो, तो इसका वो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है खासतौर पर वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर। उसकी एग्जाम्पल आप देखें, पूरे अफ्रीका से सोना और ऑयल निकलता है। अफ्रीका कहाँ है, सबसे ज़्यादा पुअर नेशन है, ठीक है। सूडान से इतना वो गोल्ड निकलता है जो कि दुबई की वो उसके पीछे वो पूरी एक मोनोपोली है। तो मतलब वहाँ पे आप देखें तो सूडानी बेचारे कहाँ हैं, क्योंकि आई यूज्ड टू बी इन नाइजीरिया, तो हम वहाँ पे मतलब नाइजीरिया में भी जाते हैं तो आप यकीन करें, आप विदाउट स्टेट प्रोटोकॉल अगर आप जाते हैं तो वो काले इकट्ठे हो जाते हैं इधर उधर। तो मतलब हम वो मैं भी कभी कभार वो चला जाऊँ तो वो इस तरीके से उनको लगता है कि हम, हालांकि हम वाइट मैन नहीं है, लेकिन वो हमें भी वाइट मैन कंसिडर करते हैं। हम तो कोई दरमियानी चीज़ है ना, वी आर नॉट एक्चुअली ब्लैक पीपल, नॉट वाइट मैन। तो वो हमें भी कहते हैं गिव मी मनी, गिव मी मनी। तो मतलब उन लोग बेचारे को इतने कोई वो गरीब है ना, मैं आपको नहीं बता सकता कि वो मतलब किस तरीके से लोग गुजारा कर रहे हैं। लेकिन ये इस तरह की जो भी एक्टिविटीज की जा सकती हैं, जितने भी ये क्लाइमेट, अब वहाँ पे कहीं पे आप डिफोरेस्टेशन स्टार्ट कर दो। अब ये तो हर शुरू से तनकीर होती आ रही है। अब COP28 दुबई में हुआ तो इन्होंने कहा सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस बेस्ड इकोनॉमी है,
तो उसके ऊपर क्या, फिर अजरबैजान में COP29 हुआ तो इसके ऊपर भी तनकीद हुई, अभी COP30 ब्राजील हो रहा है तो वहाँ पे भी तनकीद हो रही है। तो स्टिल द थिंग्स आर गोइंग ऑन। ये तो क्रिटिक्स तो हर कहीं होते हैं, लेकिन हमें मतलब अपने विजन के ऊपर फोकस रहना चाहिए। अब हम उसको क्या ठीक करेंगे, हम ट्रम्प को ठीक कर सकते हैं, हम खुद को ठीक कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें ये है कि जितना इसका अलास्का में जो फ्यूचर ऑयल एंड गैस लीज के ऊपर काम कर रहा है, उसके ड्रिलिंग प्लान्स को रिवाइवल कर रहा है, तो इट्स एक्चुअली हाईली कंट्रोवर्शियल। लेकिन अब देखें, अल्लाह मालिक है, चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसकी वजह से जितने स्पेशल एरियाज हैं जो जो कि पहले प्रोटेक्टेड थी, अब वहाँ वाइल्ड लाइफ को डेफिनेटली एक डेंजर पड़ेगा। उसकी जो सबसिस्टेंस प्रैक्टिसेस हैं, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी है, उसको डेफिनेटली दोबारा फिर बूम मिलेगी। और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एक वो डेफिनेटली क्लाइमेटिक चेंजेस और एक थ्रेट्स तो हैं ना, कम्युनिटीज डिस्प्लेस होंगी, इसका एक पीछे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन अब उसको अल्लाह अकल दे। और यूनाइटेड नेशन जो प्लान रखती है, यूनाइटेड नेशन किसी से लड़ नहीं सकती, ऑन द बेसिस ऑफ पावर भी किसी से कोई डिसीजन नहीं करवा सकती। यूनाइटेड नेशन जो है, जो उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव और बड़ी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ लोगों को समझाने की कोशिश करती है। यूनाइटेड नेशन की सिर्फ जो कैपेसिटी है वो इसी हद तक इंटरवीन कर सकती है। अब यूनाइटेड नेशन ना ट्रम्प से लड़ सकती है, उससे लड़ेगी तो यूएस तो उसका वो मेजर फंडिंग पार्टनर है, वो फंड बंद कर देगा, तो वो चलेगा नहीं। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से आप वो उसकी वॉर को भी देख लो, वो जो अभी वो चल रही है, अल्लाह माफ फरमाए, गजा इसराइल वाली, तो वहाँ भी देखो यूनाइटेड नेशन ने कितना इंटरवीन किया। मैं आपको बताता हूँ, आई यूज्ड टू बी इन इजिप्ट, कायरो। तो वहाँ पे जो इनकी यहाँ से जितनी इमदाद जाती है ना, जिस तरह यूनाइटेड नेशन के भी ट्रक जाते हैं, ये डायरेक्ट गजा नहीं पहुँचते, ये जाते हैं उधर मिस्र में, इजिप्ट में। क्योंकि ये जो इजिप्ट है, ये रफा क्रॉसिंग का वो बॉर्डर है ना, जहाँ से ये रफा क्रॉसिंग और आगे गजा वाली पट्टी है। फलस्तीन तो थोड़ी सी सेपरेट साइड पर पड़ जाता है, लेकिन जो गजा वाली पट्टी है वो वहाँ पे है। तो ये इसके पीछे इतनी इनकी वो स्ट्रांग है कि यहाँ से जितने भी इमदादी ट्रक जाते हैं, ये वहाँ इजिप्शियन रेड क्रिसेंट के हवाले होते हैं, और इजिप्शियन रेड क्रिसेंट उनको इसराइल भेजती है, बजाय इसके कि उनको गजा भेजे। इसराइल भेजती है, वहां से सामान स्कैन होता है, उनका दिल चाहे तो वो भेज देते हैं, अदरवाइज वो वहां पे अपने पास होल्ड कर लेते हैं। तो हम एज अ नेशन भी वो है ना, समझे ना, हम एज अ नेशन भी स्टैंडर्ड है। तो अगर इनको वो देख लो, इजिप्शियंस को, तो ये जो नमाज पढ़ते हैं ना, उसमें वो एक इनकी नमाज होती है, उसको वो कुनूतुन नाजरा कहते हैं। कुनूतुन नाजरा ये हर नमाज में पढ़ते हैं। तो और इनको मस्जिद के बाहर को फलस्तीन का झंडा नजर आ जाए, बंदा उड़ा देंगे। तो ये इस तरीके की चीजें हैं पड़े, स्टिल थिंग्स आर गोइंग ऑन। लेकिन लेट्स होप फॉर बेस्ट एंड लेट्स प्ले आवर पार्ट, क्योंकि जो हम कर सकते हैं, इट मे बी आवर वन ड्रॉप इन ओशन, लेकिन बट इट विल बी इंशाल्लाह। Thank you so much, Ms. Kinza, for asking your question, and thank you so much, Nazakar Bhai, for the remarkable answer. ओके, सो बहुत सारे सवालात अभी आपके पास आने वाले हैं नज़ाकत भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रेज्ड हैं और चैट बॉक्स के अंदर भी क्वेश्चंस टाइप कर चुके हैं। आई गेस पहले हम एक चैट बॉक्स से क्वेश्चन ले लेते हैं, एंड देन फिर हम इसके ऊपर आपके हैंड रेजिंग की तरफ चले जाते हैं। चैट बॉक्स के अंदर मिस मनाहिल नूर ने आपसे क्वेश्चन किया है। वो ये कह रही हैं कि व्हाई डू स्मॉल increases in greenhouse gas concentration lead to disproportionately large changes in global temperature, कि अगर हमारे पास छोटी छोटी चीज एमिशन इंक्रीज कर रही हैं, तो वो आप कह रहे हैं ग्लोबली टेम्परेचर को किस तरीके से लार्जली राइज कर रही है। जी मैडम, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। दानियाल भाई, ये देखें, सबसे पहले तो ये है कि स्मॉल वो इमिशन वो नहीं है ना, कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन कोई स्मॉल लेवल पे नहीं है। आप छोटी छोटी चीज़ों में देखें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसके एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर घर में 1 यूनिट बिजली कम कंज्यूम करें ना, हमें लगता है कि इससे कोई ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन नहीं है। 1 यूनिट रेफर्स टू एज दी 1 किलोवाट आवर ऑफ द पावर। अगर 1 किलोवाट आवर पावर, जिसको हम कहते हैं बिजली मीटर ने 1 यूनिट बिजली हमारे घर में वो यूज हुई है, तो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर है। अब 1 किलोवाट आवर के ऊपर भी पीछे 0.93 उसके टन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन है। क्योंकि वो बिजली पैदा करने के लिए, कहीं भी जब पावर पैदा होती है, या आप चीज़ों को, जिस तरह आप गाड़ियों में हम पावर पैदा करते हैं तो गाड़ियाँ मोबिलाइज होती हैं, चलती हैं, तो हर चीज़ के पीछे इमिशन है। तो दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, पहले तो ये कंसीडर करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप
पूरी अर्थ को देखें तो इतनी कितनी बड़ी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है, कितनी बड़ी की जा रही है, यू कांट इवन इमेजिन। आप कभी मेट्रोपॉलिटन जिस तरह कराची शहर के कभी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं तो वहाँ आपको पता चले कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो ये जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बड़े लेवल पे होती है और हमारा जब लाइफस्टाइल इतना अब्रप्ट और वो अग्रेसिव सा हो जाता है तो उससे ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। हमारा लाइफस्टाइल क्या है? हमारा लाइफस्टाइल ये है कि भाई 2 पैसे आए, सबसे पहले अपनी पर्सनल गाड़ी रखी। आप यकीन करें, मैंने गोरों को ट्रेन में सफर करते देखा है। दिस इज एक्चुअली तो ये चीजें इस तरीके से होती हैं। हम अब देखें, अब गवर्नमेंट बता रही है कि कार पूलिंग करो। दुनिया में हर कहीं कार पूलिंग होती है। कार पूलिंग का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप फॉर्मल, एक बंदा एक गाड़ी में जा रहा है, 4 लोगों ने लाहौर जाना है, चारों अपनी अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि चारों एक ही गाड़ी में बैठ के चले जाओ भाई, अपने आप को वो कारपूलिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी होती हैं, ऐप्स भी होती हैं, जिस तरीके से आपको वो कनेक्ट हो जाती हैं गाड़ियाँ वगैरह ना, या राइड शेयरिंग के ऑप्शंस होते हैं। तो बजाय इसके कि अपने पर्सनल प्लेन्स में लोगों ने सफर करना है तो उससे वो कर जाए। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन दिस इज नॉट एक्चुअली इन स्मॉल अमाउंट, ये भी बहुत बड़े लेवल पे ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन है, जिसकी वजह से अब टेम्परेचर भी तो कितना बढ़ रहा है। टेम्परेचर भी तो देखें 1 सेल्सियस राइज हो रहा है इतने सालों की इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो 1 सेल्सियस राइज होने से शायद हम तो सर्वाइव फिर भी कर जाए एसी वैसी लगा के, लेकिन आपकी मैरीन पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। आप ग्लोबली 1 बिलियन पॉपुलेशन का रोजगार वाबस्ता है उसके साथ, मैरीन पॉपुलेशन के साथ ना। तो वो कुछ लोग मछली पकड़ते हैं, कुछ खाते हैं। अब जिस तरह इजिप्ट है, अब इजिप्ट की 92% जो लैंड है वो बैरन है, इनहेबिटेबल नहीं है, जहाँ लोग मतलब क्या कहते हैं, नहीं रह रहे हैं। सिर्फ 8% लैंड पे लोग रह रहे हैं, जो वो जो नाइल डेल्टा है, जो दरिया नील के किनारे पे है। कुछ लोग मछलियां पकड़ते हैं, कुछ पकाते हैं, कुछ खाते हैं, यही उनका रोजगार वो बसता है। तो जब ये चीजें, उसकी टेम्परेचर चेंज होगा तो ये सारी चीजें, मैरीन पॉपुलेशन मरनी शुरू हो जाएगी। उसकी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कराची समंदर की, अरेबियन सी की। अब अरेबियन सी में हमारा एक प्रोजेक्ट था यूएनडीपी के साथ, तो वहाँ पे गए तो वहाँ वो जो सी डाइवर्स होती है ना, उसने हमें बताया कि मतलब वो कहते हैं जब हम नीचे डाइविंग करके जाती है ना तो नीचे 3 मीटर की सॉरी एलजी ब्लूमिंग की लेयर बन चुकी है। कि मतलब वो इतना, हम जब सीवेज वाटर अनट्रीटेड उसके अंदर फेंक रहे हैं, डेली का 50 लाख गैलन अनट्रीटेड वाटर समंदर में जा रहे हैं जब, तो वो कोई इंसानियत है? आप देखें कहाँ, किस दौर में कहाँ ये चीजें कहाँ होती हैं। इंसान, मुझे तो लगता है ये जानवर भी नहीं करते होंगे जो हमें ऐसा इंसान करते हैं। तो मतलब जब ये उसको वो वहाँ क्या कहते हैं उसके अंदर जा रहे थे, वो कहते हैं एलजी ब्लूमिंग की 3 मीटर तक लेयर बन चुकी है। नीचे ना कोई ऑक्सीजन जा रही है, ना सनलाइट पेनिट्रेट कर रही है, तो नीचे अभी मखलूक का क्या, वो कहते हैं पाकिस्तान के समंदर में तो मछली रह ही नहीं गई है, मछली रह ही नहीं गई है। तो इस वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पेक्ट हो रही हैं। तो आपके क्वेश्चन को थोड़ा बहुत उम्मीद है मैंने एड्रेस कर दिया होगा, मैं समझा पाया होगा अपने नाकिस इल्म के मुताबिक कि ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन भी बहुत ज्यादा है। तो इंडिविजुअल लेवल पे जब चेंज आएगी तो फिर कलेक्टिव एक्शन होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नज़ाकत भाई, एंड थैंक यू सो मच उस्मान हाइल। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल चुका होगा, और मैं इसी बात को थोड़ा सा ऐड करूँगा। नज़ाकत भाई, यहाँ पर जब आप चाइना ज़रूर आएंगे तो चाइना, मैं ये कहूँगा कि 2070 के अंदर जी रहा है। यहाँ पर इनकी जो कैनाल्स हैं, इनके अंदर अगर वो डिस्चार्ज भी आ रहे हैं वो वाटर का, तो क्लियर वाटर है। लाइक इंडस्ट्रीज उसको प्री ट्रीट करके साफ शफाफ बना रही है, एंड एलजी ब्लूमिंग बहुत कम होती है, लाइक ना होने के बराबर है। एंड अगर वो एलजी ब्लूमिंग होगी भी सही, तो आप ये कह लें कि वो बहुत ही पुरानी है। और मैं आज, चूंकि हम लोग जुम्मे से वापस आ रहे थे, तो आई रियली ऑब्जर्व द कैनाल्स, एंड वहां से आप ये प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज से हमारे पास वेस्ट वाटर आ रहा होता है कैनाल्स के अंदर, वो प्रॉपर्ली आप कह प्री ट्रीटेड है, और यू कैन क्लियरली सी इट, एंड देर इज नो फाउल स्मेल। तो ये चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा बताने लगा था चाइना के बारे में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि नज़ाकत भाई, देयर इज अ हैंड रेज्ड ऑफ मिस्टर अब्दुल मुक्तदिर। सो प्लीज मुक्तदिर, आप अपना क्वेश्चन पूछिए नज़ाकत भाई से। Assalamualaikum. First of all, thank you for giving me opportunity for asking question. I am a graduate from National University of Modern Languages. And sir, I have one, two, three questions regarding climate diplomacy. First of all, if we see that climate diplomacy, we have multiple conferences like Paris Climate Agreement, COP 27, 28, till to the 2030, the COP 30. But we have not financed Global South.
Do you know the global north is more industrialized? They are the main reason for the climate change because they are industrialized, they are developed states, but we are facing the main problems. But they are not financing us. वो तो ऐसे समझते हैं जैसे कि हम उनसे भीख मांग रहे हैं, ये पैसे मांग रहे हैं। तो सर इन क्लाइमेट डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंसेस करने का मुझे तो नहीं लगता कोई फायदा है। हमें इन वेस्ट की कंट्रीज पे रिलाई करना चाहिए। सर पहली बात तो ये एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड चीज जो आपने बात की थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ऐसे आर्गुमेंट्स देता है, एक दिन तो एक बात करता रहता है तो दूसरे दिन दूसरी बात। जैसे कि आपने कहा था कि नेचुरल रीजन है ये, लेकिन ये खुद ही इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, ये प्रमोट करते हैं क्लाइमेट को, ज्यादातर इनकी तरफ से ग्रीन हाउस इमिशंस होती हैं। इस तरह वेपन्स भी यही प्रोड्यूस करते हैं ज्यादातर जंग के लिए। स्पेशली यूएस की सबसे बड़ी वेपन इंडस्ट्री है। मैंने जिस जहाँ तक डीपली स्टडी की है, तो फिर वो मांगता रहता है कि मैं पीस लाता हूँ, दुनिया में पीस करता रहता हूँ, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि ये यूएन कामयाब है या जो है वेस्ट कंट्रीज हमारे लिए सूटेबल हैं, क्योंकि ये अपने मफाद को देखते हैं, अपने इंटरेस्ट को। आईआर में जो है, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं नहीं समझता ये सेल्फ इंटरेस्ट के सिर्फ पीछे लगे हुए हैं। ये अपनी फाइनेंस की तरफ हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करते, ना यूएन के थ्रू ना आईएमएफ के थ्रू। हमें लोन में इन्होंने ऐसे समझे दबा दिया है, हम आज तक लोन से नहीं निकल सके। पाकिस्तान एज ए ग्लोबल साउथ इमर्जिंग डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलपिंग कंट्रीज को डू नॉट रिलाई। मैं कहता हूँ कि यूएन पे भी रिलाई नहीं करना चाहिए। यूएन को कोई आर्मी नहीं है, तो वो ऐसे ही आपने देखा था जब लीग ऑफ नेशन फेल हुई थी, तो उसके पास भी कोई आर्मी नहीं थी। अब यूएन के पास भी कोई आर्मी नहीं है, तो हम यूएन तो कोई भी ऐसा इन्फोर्स डिसीजन लेजिटिमेट नहीं कर सकता जिससे हमें कोई फायदा मिले। तो सर आपके क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू होंगे, हमें किस तरह जो है आगे बढ़ना चाहिए? क्लाइमेट डिप्लोमेसी करनी चाहिए या अभी तक, yeah, we are facing failure still today? I am saying that we are facing very, very issues after the climate diplomacy in every Paris Agreement, each and everything. I have not seen even a 0% increment for the global South nations. Thank you so much. जी सर, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग योर क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है और फैक्ट बेस्ड है और डिप्लोमेटिकली वेरी स्ट्रांग है। अब आप इस चीज को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लाइक वी आर नॉट इन अ पोजीशन कि हम डिसाइड करेंगे ये क्लाइमेट डिप्लोमेसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वी आर नॉट इन अ पोजीशन, पहली बात तो ये है। लेकिन इसमें जो हम अपनी एक एक्सपर्ट ओपिनियन या अपनी एक उसको क्या कहते हैं टेक्निकली चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो ये है कि लाइक मैं ये समझता हूँ कि वी शुड प्ले आवर पार्ट। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं और ये चलती रहेंगी, ना ये हमारे कहने पे रुकनी है और ना ये रुक सकती हैं और ना ये हमारे कहने पे शुरू हुई थी। पहली बात तो ये है कि दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड और ये चलती रहेंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये है उनकी तरफ से जो चीजें आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करो। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल आई डू एग्री विद यू, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ जो है वो इज नॉट फाइनेंसिंग द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। ऑल्दो ऑल्दो बिकॉज ऑफ हमारी ये लीगल और मॉरल कमिटमेंट्स तो इसमें दोनों ही है कि हम मतलब बिल्कुल ये हकदार हैं, क्योंकि हम वी आर दी क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री। अब इसमें सबसे पहले पता क्या होता है। अब ग्लोबल नॉर्थ जो है फर्बर उसने तो क्योटो प्रोटोकॉल में भी कमिट किया, पेरिस एग्रीमेंट में भी कमिट किया कि वो हमें जो है एडिशनल फाइनेंस देंगे, एडिक्वेट फाइनेंस देंगे, या एक उनको वो प्रिडिक्टेबल या न्यू उन्होंने फाइनेंस किया था कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे। हाउएवर दीज कमिटमेंट्स आर स्टिल अनफुलफिल्ड। तो ये बेसिकली अब अगर आप इसको देखें ना, तो ये बेसिकली ओईसीडी एक इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस में हेडक्वार्टर पेरिस में है बेसिकली, ओईसीडी पेरिस के नाम से। अब आप इसकी सिंपल एग्जांपल समझिए, जो $100 बिलियन प्लेज हुआ था इज स्टिल नॉट डिलीवर्ड येट।
अब इन्होंने जो 2009 में वो प्लेज किया कि $100 बिलियन हम 2020 तक कंटिन्यूअसली देते रहेंगे फॉर मिटिगेशन, अडेप्टेशन एंड रेजिलियंस। तो लेकिन अभी तक वो नहीं डिलीवर्ड हुआ। लेकिन अभी तक ओईसीडी, एज पर ओईसीडी एनालिसिस, उन्होंने मतलब उन्होंने बोला कि 83 बिलियन डॉलर जो है ना उन्होंने वो प्लेज कर दिया। और इवन दैट अमाउंट इज मिसलीडिंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इवन दैट अमाउंट इज मिसलीडिंग बिकॉज अब उसका जो फाइनेंस $100 बिलियन उन्होंने प्लेज किया था कि वी विल प्रोवाइड इट एज अ ग्रांट। लेकिन इस फाइनेंस का जो $83 बिलियन प्लेज हुआ, इसमें से 70% तो एज अ लोन आया। अब लोन आया तो उसको पे बैक भी तो करना है ना। तो इसी चक्कर में आगे हम फंस जा सकते हैं, जिसमें से 21% जो उन्होंने एडेप्टेशन के लिए फाइनेंस किया। और इवन दो जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको तो बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन जितना भी प्राइवेटली फाइनेंस मोबिलाइजेशन है, इट वाज ओवरस्टेटेड। तो ये चीजें तो बिल्कुल इसमें वो, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो माशाल्लाह हमारे लिए तो एक बहुत वो है। लेकिन अब उनके बारे में हम क्या क्या बात करूं कि मतलब वो जो बंदा बोलता है अब सारे उसके पीछे बस, वो हमारा इमाम बना हुआ है, वो कभी जंगे रुकवा रहा है। आप सही कह रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा उसका ये इसका काम भी है। ये एमुनिशन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अमेरिका है और पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। तो उनको तो जंगे करवाना, इन चीजों में मजा आता है क्योंकि उनका कारोबार चलता है। अब खुद देखें एक बंदे का फायदा, अब मैं अगर देखूं, हम एज ए डॉक्टर है, अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसी दुआ नहीं करता। मतलब हम डॉक्टर भी यही दुआ करेंगे ना कि हर किसी की जानवर बीमार हो, चलो मेरी दिहाड़ी बनती रहे। तो इस तरीके से वो भी दिहाड़ी बाज है, अपनी दिहाड़ी बनाएगा चला जाएगा। लेकिन चीजें हमें ये है कि हमें कलेक्टिव एक्शन लेने चाहिए और अपने एंड पे देखना चाहिए कि व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन कंट्रीब्यूट, हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें आप देखें, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब वो कर रहे हैं उनको करने दे, जो उनको सिस्टम में समझ है तो वो हमारे कहने ना कहने से रुकेंगे थोड़ी। लेकिन इसमें जो आपकी ओपिनियन है बिल्कुल ठीक है कि चलो बेहतर है कि अब जो कॉप्स वगैरह होते हैं जब उनका कोई फायदे नहीं है तो वो फिर करवाओ ही नहीं। हर बंदा 10-10 लाख रुपए की टिकट करवा के जा रहा है, कोई प्राइवेट जेट्स में जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का सबक देने जा रहे हैं, और वहां जनाब सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज कर ही खुद रहे हैं कि इतने प्राइवेट जेट्स में इतनी ज्यादा एयर ट्रैफिक होगी, सारी चीजें होगी। वो भी उसके ऊपर भी पूरी रिपोर्ट्स होती है, पूरी तनकीद होती है, ये हर साल होती है और होती आ रही है। लेकिन इनको इन चीजों से नहीं फर्क पड़ रहा ना। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र, सबसे अच्छी चीज ये है कि अब इन चीजों को जरा स्पीड अप देखा जा रहा है। अब ये देखें, पिछला COP29 हुआ, एक साल पहले ही हुआ ना, पिछले साल इन दिनों में हुआ था। आई वाज इन बाकू अजरबैजान एट दैट टाइम। तो अब वहां पे उस वक्त देखें कि कितनी अवेयरनेस थी, और इस साल में देखें, इस साल में बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ी। इस साल में तो बच्चे बच्चे को पता चल गया कि COP30 क्या है और ये कॉप्स क्या होते हैं। पिछले साल किसी को इतना पता ही नहीं था। पिछले साल हम भी गए थे तो बस ठीक है, ये अपने दोस्त यारों को पता था कि मतलब जो लोग पहले क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे थे, जैसे दानियाल भाई हो गए, तो मतलब हम सभी को पता होता था कि हाँ यार वो गया हुआ है, वो गया, और किसी को नहीं पता था। अभी पंजाब गवर्नमेंट कितनी मार्केटिंग कर रही है उस इवेंट की, आप देखें कितना उसका फायदा उठा रहे हैं। तो गवर्नमेंट्स को फायदा है, अब कुछ ना कुछ चलो फंड आएगा, कुछ ना कुछ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, के चलो कुछ ना कुछ आ गया तो लाइक कुछ वन ड्रॉप इन ओशन ही हो जाए तो दैट्स मोर देन इनफ। तो ये चीजें हैं बेसिकली। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका आंसर देने का। लेकिन सर मैं कुछ और कंट्रीब्यूट करूंगा। आपकी एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट जो थी कि हमें खुद एफर्ट करनी चाहिए, जैसे कि दरख्त लगाने चाहिए अपने घरों में, अपनी गलियों में, अपने पूरे विलेज में, ताकि हम क्लाइमेट को मिटिगेट कर सकें। और आपकी ये सबसे बड़ी बात थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इट्स वेरी गुड इनफ फॉर द क्लाइमेट मिटिगेशन। हमें रिलाय अपने आप पे करना चाहिए, ना कि वेस्ट पे, क्योंकि हमारे बहुत सारा पैसा वेस्ट हो रहा है, ना ही हमें कुछ मिल रहा है। ना कॉप में मिला था, ना पेरिस एग्रीमेंट में मिला था। मैंने नहीं देखा कि आज तक हमें कोई ये इतने सपोर्ट करेंगे, और ये हमें जो है नुकसान ही पहुंचाते रहेंगे। हमें खुद डेवलप होना है तो हमें खुद ये एफर्ट्स करनी पड़ेंगी अपनी नेशनल लेवल पे, ताकि हम जो है ना क्लाइमेट को मिटिगेट कर सके। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट सर। हम हर एक स्टेट ग्लोबल साउथ में जो भी डेवलपिंग नेशन है, अगर कलेक्टिव एफर्ट नहीं लेती तो आई मे नॉट थिंक कि हम क्लाइमेट को मिटिगेट कर सकेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। Thank you so much once again, Nazakat Bhai, and thank you so much, Muqtadir, for asking question. Okay, so Nazakat Bhai, we have another hand raised of a lady, Miss Fatma Adnan. Miss Fatma, if you have your question, so please ask from Dr. Nazakat.
अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी। सर, जो हम अभी सीओपी के ऊपर बात कर रहे हैं, इसमें मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक यह है कि जो सिंगल पॉइंट ऑफ कंटेंशन करंटली जो डोमिनेट कर रही है रियल सीओपी निगोशिएशंस को, वो क्या है, और कौन सी डिबेट्स हैं जो आगे 2026 की कमेटी में जो हैं वो स्पिल ओवर होने वाली हैं कि ये डिबेट्स होंगी और इन पे काम होना चाहिए। जी मैडम, कैन यू प्लीज हियर मी? यस सर। ओके, थैंक यू। ये देखें, सबसे ज्यादा अभी जो इनका फोकस है ना, वो अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन के ऊपर भी है, लॉस एंड डैमेज के ऊपर, क्योंकि अभी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका सबसे बड़ा जो है ना वो लॉस हो रहा है, लॉस एंड डैमेज हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, अपना स्ट्रक्चर जो पैरालाइज्ड हो रहा है, और नेचर बेस्ड सोल्यूशंस की तरफ कम जा रहे हैं। और जिस तरीके से मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के ऊपर अल्टीमेटली इनको जो लिमिट करने, जिस चीज़ को लिमिट करना चाह रहे हैं वो है 1.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 2025 आ चुका है और आफ्टर 5 इयर्स ये हमारी वो भी कंप्लीट हो जाएगी ना, 2030 तक है ये बेसिकली। तो अभी जो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिबेट हो रही है, तो अडेप्टेशन और मिटिगेशन के ऊपर ज्यादा है, ठीक है, और रिजिलियंस के ऊपर, क्लाइमेट रिजिलियंट कम्युनिटीज खास तौर पे जिनमें वो डिजास्टर प्रोन एरियाज है उसके अंदर करवाई जाए। और दूसरा जो ये है कि उसकी जो लिमिट है या उनका जो एक स्टैंडर्ड है वो भी 1.5 सेल्सियस के ऊपर ही चल रहा है। और 1.5 सेल्सियस की मैंने आपको पहले बता दिया कि वो ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन को लिमिट करना चाह रहे हैं, कि हर बंदे की जो इंडिविजुअल के कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, ऑर्गेनाइज, वो एक कहते हैं ना इको सेल्फ है, फिर इको ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इको कंट्री है। तो इको सेल्फ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि अगर बंदा खुद क्लाइमेट फ्रेंडली है, उसकी अपने इंडिविजुअल के कार्बन फुटप्रिंट्स कम है, तो फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके होम के, फिर कंट्री के, इस तरीके से ना। तो अभी एज अ कंट्री वो पाकिस्तान गवर्नमेंट देख रही है कि उनकी कार्बन इमिशन कितनी है, हम एज अ इंडिविजुअल देख रहे हैं, फिर घर की देख रहे हैं। तो इस तरीके से है ना ये चीज़ें चल रही हैं। मतलब मेन इनका जो टारगेट है वो टू पुट कैप ऑन आवर नेशनल इमिशंस, और दूसरा ये जो जिस चीज के लिए स्ट्राइव करें इन क्लाइमेट अडेप्टेशन, मिटिगेशन एंड रेजिलियंस। आई गेस मिस फातिमा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा, एंड मैं बिल्कुल थोड़ा सा सेकंड करूंगा, थोड़ी सी एडिशन करूंगा नज़ाकत भाई के इस क्वेश्चन के अंदर। आपका सवाल है कि 2026 की कॉप के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो अभी नज़ाकत भाई इस बारे में थोड़ा सा और मैं उनकी राय लेना चाहूंगा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। इसके अंदर नज़ाकत भाई बिल्कुल ऐसे ही होगा कि हम लोग ग्लोबल जीजीए, हम लोग ग्लोबल गोल गोल ऑन अडेप्टेशन के ऊपर बात करेंगे, हम लोग कार्बन मार्केट्स के ऊपर बात करेंगे, पार्टिकुलरली उसका जो आर्टिकल 6.4 है, हम लोग बात करेंगे जेंडर एंड क्लाइमेट के ऊपर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारे नेशनल एडेप्टेशन प्लान है एनएपीएस, हम उनके ऊपर बात करेंगे। मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सवाल यही था ना स्पेसिफिकली कि कॉप 2031 के अंदर हम लोग क्या क्या बात करेंगे। जी 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 जी, सॉरी सॉरी दानियाल भाई, शुक्र है आपने याद रखा, मैं बस वो भूल गया। एंड आई एम सो सो ग्रेटफुल टू यू कि आप चलो थोड़ा बहुत आसरा करवाते रहते हैं, सो थैंकफुल। अच्छा, इसमें यह है कि कॉप कॉप 31 को अगर देखें ना, तो इट विल बी द हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो है ना एक तो जो पिछले जो कि ग्लोबल क्लाइमेटिक फाइनेंस गोल ये अभी इस साल इंशाल्लाह सेट करेंगे, एक तो उसके इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर को ये फाइनलाइज करेंगे कि वो किस तरीके से उसको लाइक हाउ हाउ दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट। और उसके बाद इसका मिटिगेशन पाथवे बनाएंगे वो ऑफ द 1.5 सेल्सियस। और इसमें जो सबसे बड़ी एक अभी डेवलपमेंट हो रही है वो कार्बन मार्केट्स की है, कि वो कह रहे हैं कार्बन जो ये हमारी इमिशन है इसको ट्रेड ऑफ करवाया जाए। ट्रेड ऑफ से मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल आप एक कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट को देख लें, वो डेटा सेंटर चला रही है। अब डेटा सेंटर चला रहे हैं तो इट मींस दे आर द हाईली कंट्रीब्यूटर ऑफ द क्लाइमेट चेंज, सबसे ज्यादा इनकी ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन है। तो वो उसके ऊपर लाइक दे विल बी पुटिंग द कार्बन टैक्स ओवर देयर। और अगर उन्होंने कार्बन टैक्स से बचना है तो उनको कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर आना पड़ेगा। कार्बन क्रेडिट्स मीन कि अब फॉर एग्जाम्पल मैंने दरख्त लगाए हैं, अब दरख्त तो 1 एकड़ में मैंने प्लांटेशन कर दिया, तो 1 एकड़ इट मीन्स कि वो पौधा जो है वो कॉन्टिन्यूसली माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर रहा है, अपने अंदर स्टोर कर रहा है। 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड removed from atmosphere, that's so called one carbon credit, and one carbon credit can be traded in carbon markets by $29। तो $29 का एक कार्बन क्रेडिट सेल होता है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मेरा मतलब मेरे ज्यादा फोकस इन्हीं चीजों के ऊपर रहता है ना। तो अब ये कार्बन मार्केट्स अंडर द आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, तो ये कार्बन मार्केट्स के ऊपर एक बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की भी नेशनल पॉलिसी गाइडलाइंस आ चुकी हैं कार्बन मार्केट्स की। तो आने वाले कॉप्स के ऊपर जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो फोकस रहेगी
वो ये कार्बन मार्केट्स के ऊपर रहेगा ना, और ताकि हर बंदा जो अपने कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उसको ऑफसेट करे, ऑफसेटिंग ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट्स हो। अब फॉर एग्जाम्पल उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी अब यूरोप की जितनी फ्लाइटें हो रही हैं ना, उसके अंदर एक फ्लाई ग्रीन का ऑप्शन आ रहा है। अब फ्लाई ग्रीन का ऑप्शन आ रहा है तो वो आपकी जो उसकी जो टिकट प्राइस होती है वो 2,000 रुपये इंक्रीज हो जाती है। अब वो 2,000 रुपये से वो आपके हिस्से के पौधे लगाते हैं कि मतलब आपके हिस्से का जो जहाज उड़ेगा, जो आपके इंडिविजुअल की कार्बन फुटप्रिंट्स बनेंगे वो ऑफसेट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ही अब कार्बन ऑफसेटिंग की तरफ ये ज्यादा उसके ऊपर डिस्कशन होगी, और इसके और साथ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंडिंग, और जो क्लाइमेट फाइनेंस गवर्नेंस है उसके अंदर भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे तो ये लगता है, बाकी देखें फ्यूचर है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। थैंक यू सो मच नज़ाकत भाई एंड मिस फातिमा। आई गेस कि अब आपको कार्बन मार्केट्स के बारे में भी पता चल चुका होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम मिस फातिमा, आई गेस देयर वाज अनदर लास्ट हैंड रेज्ड। आई गेस मिस्टर जुनेद आपका था, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क फ्रॉम डॉक्टर नज़ाकत। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा क्वेश्चन था थोड़ा सा बीच में मुझे आंसर मिल गया था, इसलिए मैंने फिर हैंड जो था लोअर कर दिया सर। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा सर नज़ाकत से कि हाउ डू यू रेट के पाकिस्तान की क्लाइमेट डिप्लोमेसी को किस तरीके से आप रेट कर रहे हैं इस वक्त जो ये कर रहे हैं? क्योंकि मुझे बाकी किसी प्रोविंस के अंदर एज सच इसके ऊपर भी काम नहीं नजर आ रहा क्लाइमेट मिटिगेशन के ऊपर। पंजाब गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा किया है अपने तौर के ऊपर, खास तौर के ऊपर इस दफा कॉप में जो मैडम गई हैं हमारी सीएम गई हैं, उन्होंने कुछ बातें की हैं। आल्दो के कुछ डाटा के ऊपर कुछ लोग उन पे डिफर करते हैं कि उनका डाटा जो लेकर गई हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन जस्ट क्वेश्चन ये है कि आप रेट किस तरह करते हैं हमारी क्लाइमेट डिप्लोमेसी को? क्योंकि जिस तरह अभी पहले भी मुक्तदर ने भी क्वेश्चन किया कि हमें मिल कुछ नहीं रहा, वो कहीं हमारी क्लाइमेट जो डिप्लोमेसी है उसका रिजल्ट तो नहीं है कि इतनी इफेक्टिव नहीं है हमारी, या इसकी कोई और वजह है? मैं इसलिए ये पूछना चाह रहा हूँ कि फर्दर ऑन इसके बाद फिर इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट जब क्लास होगी मैं तब क्वेश्चन पूछूंगा कि जो क्वेश्चन है मेरे वो बहुत थोड़े से आगे के हैं, अभी अर्लियर स्टेज है। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। अब देखें, अगर आप पाकिस्तान की क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात करें, सबसे पहली बात तो अब अक्सर लोग कह रहे हैं कि हमें मिल कुछ नहीं रहा। अच्छा, इस चीज की कैसे गारंटी है कि मिल कुछ नहीं रहा? शायद ये मिल रहा हो और हम तक पहुंच ना रहा हो, ये भी तो हो सकता है, बिकॉज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान। तो कुछ चीजें ये भी होती हैं। शायद मिल रहा है, मुझे लगता है मिल रहा है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के चैनल और सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ होती हैं। मिल जरूर रहा है, लेकिन पहुंच हम तक कम रहा है। आप पिछले साल की देखें, $300 बिलियन प्लेज हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर भी हुआ कि ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो डेवलपिंग वर्ल्ड को, ऑल्दो के $1.3 ट्रिलियन का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एवरी ईयर टू डेवलपिंग वर्ल्ड। लेकिन डेवलप्ड वर्ल्ड ने कहा कि वो आफ्टर द नेगोशिएशन वो फाइनलाइज किया कि $300 बिलियन ये देंगे हर साल। तो उसमें पाकिस्तान को अपना हिस्सा मिल रहा है, और ज़रूर मिल रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत जो काम आपको नज़र आ रहा है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें वहीं से हो रही हैं, सुथरा पंजाब की एक्टिविटीज़ वगैरह और ये सारी चीज़ें ना। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की वो, अब क्या कहते हैं इसकी, वो देखें ना, पाकिस्तान की क्लाइमेट, वो क्या क्या सॉरी कहना, डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो बेसिकली इन तीन चीज़ों के ऊपर वो बेस्ड है ना। एक जो मैं पहले CBDR कह रहा था ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अलावा क्लाइमेट जस्टिस और प्रोटेक्शन ऑफ द वल्नरेबल इकोनॉमीज। ठीक है, तो इसमें पाकिस्तान का जो रोल रहा है ना निगोशिएशन में लास्ट ईयर भी, इट वाज नॉट टू मच प्रोफेशनल। बस वो आप 50-50 ही कह लें, क्योंकि हमारे जो निगोशिएटर भी बैठे होते हैं, जो पार्टी ओवरफ्लो बैच के साथ जाते हैं, वो भी बस गुजारे लायक ही होते हैं। उसमें मैडम रुमीना खुर्शीद बैठती हैं, उससे पहले शेरी मजारी थी, तो उनका वो बड़ा एक, शी वाज टेक्निकली साउंड एंड फैक्ट प्रोफेशनल, तो उसकी वजह से वो काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन अब ये लोग जो है, इनमें वो प्रोफेशनल नहीं है, बस इनको भी वो एक, उनके पास एक वो ऐसे समझ लें कि पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर सारी चीज़ें पीछे से प्रोफेशनल लिख के दे देते हैं, और उसको अगर कोई आफ्टर द काउंटर क्वेश्चन रेज हो जाए तो फिर उसको वो प्रॉपरली टेक्निकली डिफेंड नहीं कर पाते। लेकिन वो हम पाकिस्तानी हाथ हमारा हमें हमेशा ऊपर ही रहता है, भले हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन हाथ हम ऊपर रखते हैं, अगले को झूठा साबित करके ही आते हैं। तो इसी वजह से ना वो कुछ हमारी क्लाइमेट डिप्लोमेसी में बिल्कुल फॉल्ट है, आई डू एग्री विद यू। लेकिन उसके लिए
फिर पाकिस्तान उन गैप्स को ब्रिज कर सकता है बाय हायरिंग द टेक्निकल एक्सपर्ट्स, वो इनके पास है भी चाहिए, तो इस तरीके से उसको इन गैप्स को डेफिनेटली ब्रिज किया जा सकता है सर। दैट्स डूएबल एंड मैनेजेबल, बट इट ऑल कुड हैपन बाय द विल ऑफ आवर पाकिस्तानी गवर्नमेंट। लेकिन जैसे जैसे अब इन चीज़ों की नीड बढ़ रही है, नीड राइज हो रही है, तो साथ साथ चीज़ें हो भी रही हैं अल्लाह के फजल करम से। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर जुनेद, आपको आपका आंसर मिल चुका था। अच्छा, सो सॉरी आई हैड टू लीव इन द मिडल ऑफ द मीटिंग। देयर वाज अ क्वेश्चन जाकिर भाई, एंड वो कह रहे थे कि क्या आप आईपीसीसी के बारे में दोबारा से बता सकते हैं? जी जी, वायनाड वायनाड दानियल भाई आईपीसीसी के बारे में बता देते हैं। आईपीसीसी आईपीसीसी के बारे में क्या बताना है? वेल, शुरुआत में उनका क्वेश्चन था कि जो आप बात कर रहे थे आईपीसीसी के बारे में कि ये बॉडी किस तरीके से हमारे पास साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करती है, स्प्रेड करती है, तो थोड़ा सा प्रॉपर्ली आपका गाइड कर दें उनको, एंड हाउ इट्स रोल इज बीइंग आपके लिए इन्फ्लुएंशियल इन यूएनएफडब्ल्यूसी। ओके ओके, मैं बिल्कुल बिल्कुल बता देता हूँ। अच्छा, सबसे सबसे पहले तो ये है कि जितने भी ये आईपीसीसी है इनके अब इसका मैं आपको बता दूं। बेसिकली तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें बेसिकली वर्किंग ग्रुप्स होते हैं ना। अब इसमें जिसको डब्ल्यूजीआई कहते हैं, मतलब वर्किंग ग्रुप्स, वर्किंग ग्रुप 1 हो गया, वर्किंग ग्रुप 2 हो गया, इस तरीके से इनके वर्किंग ग्रुप्स होते हैं, उनकी टास्क फोर्सेज होती हैं जो मतलब डिफरेंट इश्यूज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आईपीसीसी को देखें, इट्स एक्चुअली अ लीडिंग साइंटिफिक अथॉरिटी, कि मतलब क्लाइमेट चेंज के ऊपर जितनी भी साइंटिफिक रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं, जितना भी डेटा आता है, तो वो आईपीसीसी की डिटेल जो पैनल पैनल जो है वो इलस्ट्रेट करता है उन सारी चीज़ों को। लेकिन अच्छा, ये भी समझना ज़रूरी है कि ये कोई खुद रिसर्च नहीं करते हैं। लेकिन ये क्या है, ये जितने भी हाई लेवल रिसर्च इदारे हैं जो कि क्या कहते हैं, जो उनकी रिसर्च को इवेलुएट करते हैं, और उसी के जो साइंटिफिक डेटा दिया जाता है या जो जितनी भी साइंटिफिक फाइंडिंग्स होती हैं उनको डेफिनेटली वैलिडेट करते हैं, और फिर गवर्नमेंट्स को गाइड करते हैं ऑन क्लाइमेट चेंज। अब आईपीसीसी बेसिकली इट वाज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द यूएनईपी, और जो ये थी ना, क्या कहते हैं, ये जो रिकॉर्ड देते हैं, हीट टेम्परेचर्स का रिकॉर्ड देते हैं, क्या कहते हैं, डब्ल्यूएमओज, हाँ, एक्चुअली वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने एक्चुअली क्रिएट की थी, जिसमें इन्होंने क्या कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट वगैरह को नॉमिनेट किया, ताकि उसके अंदर जो जितनी भी समरीज वगैरह होती हैं, कोई ड्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, उनको अप्रूव वगैरह करवाने के लिए ऑन द बेस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो इसमें थाउजेंड ऑफ जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो डेफिनेटली ऑन वॉलंटरी बेसिस इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं दी रियल क्लाइमेट डाटा। अब इसका जो मेनली ये होता है कि ये जितना भी लेटेस्ट वो क्या कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज होता है उसको, जो कि क्लाइमेट चेंज के काजेज हो सकते हैं, कि भाई क्लाइमेट चेंज किस किस वजह से हो रही है, उसके क्या काजेज हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, अडेप्टेशन है, मिटिगेशन है, ये उसके उन डेटा को असेस करते हैं, और फिर क्या कहते हैं गवर्नमेंट को जो साइंस बेस्ड एविडेंस होते हैं वो उनको देते हैं, जिसमें एनडीसीज अपडेट्स हो सकती हैं, नेशनल पॉलिसीज के अंदर इंटीग्रेशन बताते हैं कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को अपनी नेशनल पॉलिसीज के अंदर इंटीग्रेट करो, तो फिर आप ये क्लाइमेट चेंज को टैकल वो कर सकते हैं। बाकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर वर्किंग ग्रुप्स होते हैं। जो वर्किंग ग्रुप 1 होता है वो बेसिकली उसमें वो फिजिकल साइंसेज के ऊपर काम कर होता है, जिस तरीके से आपके क्लाइमेट मॉडल्स हो गए, आपका सी लेवल राइज हो रहा है, मतलब जो जो चीज़ें क्लाइमेट चेंज की हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आपके एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस आ रही हैं, आपका ओशन की डायनामिक्स को बदल रही हैं, कार्बन साइकिल्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये इस चीज़ के ऊपर फोकस हो रहते हैं। बाकी जो वर्किंग ग्रुप 2 होता है वो अडेप्टेशन और वल्नरेबिलिटी को देखते हैं, जिसमें वो देख रहे थे कि क्लाइमेट की वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं, आपकी एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम किस तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी फादर वाटर पोल्यूशन, ये जो है जिस तरीके से अभी बता रहे हैं कि पाकिस्तान का हमारी 80% पॉपुलेशन इज ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। और पाकिस्तान की एक ऐसी एनजीओ है एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, उनके साथ मैंने वाटर सैनिटेशन के ऊपर काम भी किया। पंजाब का मैं उनका प्रोविंशियल हेड रहा था, तो हम मतलब ये बायोसैंड फिल्टर के ऊपर काम करते थे, लाइक इट वाज ए सस्टेनेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर सोल्यूशन। तो वाटर स्कैरिसिटी वगैरह हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, कि मतलब किस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है,
फिर उसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज होती हैं अफ्रीका साइड पे, इनको आईडीपीज कहते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, इनके कैंप्स वगैरह होते हैं। तो इसकी जो ह्यूमन सेटलमेंट की जो वल्नरेबिलिटी वगैरह है, इसको करते हैं, और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो गया, ये वर्किंग ग्रुप 2 जो है ये इसको वो देख रहा होता है। बाकी इनका वर्किंग ग्रुप 3 होता है जो कि उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन के ऊपर काम करते हैं, कि मतलब उसको किस तरीके से आप इमिशंस को रिड्यूस कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो। मतलब आप एनर्जी सिस्टम है कि पहले हम ग्रिड की एनर्जी यूज करें तो आप सोलराइज हो जाएं, हाइड्रो एनर्जी पे चले जाएं, बायोमास पे चले जाएं, ठीक है, ये जिनमें रीन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शन है उसके ऊपर आप शिफ्ट हो जाएं। ट्रांसपोर्ट पहले आप इंजन बेस यूज करो तो आप ईवीज पे चले जाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। इंडस्ट्री को इस तरीके से आप रीमॉडलिंग उसकी करो कि वो सस्टेनेबल तरीके से चल रही हो, आपकी बिल्डिंग्स जो हो वो ग्रीन बिल्डिंग्स हो, वेस्ट हो तो वेस्ट की प्रॉपर सेग्रीगेशन हो, घरों के अंदर 3 बिन सिस्टम इंस्टॉल हो कि भाई ये शार्प ऑब्जेक्ट्स के लिए है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए है, ये प्लास्टिक बॉटल्स के लिए है। तो और एक वो उसको क्या कहते हैं, एक कलेक्टिव टर्म यूज होती है अफोलो, AFOLU, इसको कहते हैं एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड लैंड यूज ना। तो ये बेसिकली इसके ऊपर ये वर्किंग ग्रुप 3 जो है ना, इसके ऊपर वो दे रहा होता है कि सोलर पैनल्स लगाओ, विंड एनर्जी करो, नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि आफ्टर 2050 जो इनका नेट जीरो का है कि आपने नेट जीरो अचीव करना है। फिर ये जो कोल वगैरह है या फोसल फ्यूल्स का है, जिस तरह दानियाल भाई कह रहे थे कि वहाँ वो COP30 के ऊपर ये भी इंडिजिनस कम्युनिटीज ने जो इन्वेट किया है COP को, तो वो इसी वजह से कि फोसल फ्यूल का फेज आउट करो, ठीक है, रैपिड फेज आउट ऑफ द फोसल फ्यूल। ये हर साल बहुत बड़े प्रोटेस्ट होते हैं प्रॉपर COP के अंदर ना, फेज आउट ऑफ द फोसल फ्यूल्स के ऊपर। और इन चीज़ों के ऊपर जाओ तो बेसिकली IPCC के वर्किंग ग्रुप्स इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, और ये बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च का इदारा है। तो इस तरीके से ये रिसर्च वगैरह लोगों से करवा के उसको वैलिडेट करके और डिफरेंट रिपोर्ट्स को सिंथेसाइज करके फिर गवर्नमेंट्स को देते हैं और उनको बताते हैं कि आप किस तरीके से अपनी पॉलिसी में इंटीग्रेट कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। थैंक यू सो मच नज़ाकत भाई, एंड आई रियली होप कि जिन्होंने पूछा था उनको उनके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क डॉक्टर नज़ाकत, he is here to answer all your queries। एंड ये आपसे सवाल पूछा था नज़ाकत भाई मिस्टर जहांजेब ने, उन्होंने कहा thanks for the exhaustive elucidation you furnished। ओके अच्छा नज़ाकत भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि फिर हम इसको इख्तिताम पजीर करते हैं इस आज की ट्रेनिंग का। चूंकि आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा फूड सिक्योरिटी के ऊपर है और किस तरीके से हम लोग अपने एग्रीकल्चर सिस्टम्स के अंदर ट्रांजिशन ला सकते हैं, एवोल्यूशन ला सकते हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूँ कि इस COP30 के अंदर आपको क्या लगता है फूड सिक्योरिटी को किस तरीके से, किस अंदाज में देखा जाएगा, एंड हमारा जो एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है वो किस तरीके से UNFCCC उसके अंदर बात करेगा, क्योंकि हम लोग UNCCD के अंदर इसको ज़्यादा देखते हैं, लेकिन मैं UNFCCC के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहता हूँ। जी दानियाल भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ये इस दफ़ा जो फोकस है ना, दे आर मेनली फोकस्ड ऑन द सस्टेनेबल फूड सिस्टम। एक तो ये कह रहे हैं कि जो अपनी जो फूड चेन है उसके अंदर ये एनिमल प्रोडक्ट्स का बाइकाट करो, जितनी भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट्स को ये क्लाइमेट वाले जो ना ये सस्टेनेबल नहीं समझते। फॉर एग्जाम्पल मीट कंज्यूम करना, एग्स वगैरह खाना, क्योंकि इसके पीछे वो कहते हैं बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन है। वो कहते हैं 1 kg बीफ पैदा करने के पीछे इतने लीटर पानी ज़ाया हो जाता है, इतना माहौल को नुकसान पहुँचता है। तो एक तो ये कह रहे हैं कि आपकी जो जितने भी वो फूड हो ना, वो ये एग्री बेस्ड हो, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स आप खाएं। क्योंकि अभी वो आपको पता है पेरिस ओलंपिक्स हुई थी, तो वहां पे भी उनका यही मेन एजेंडा यही था कि वो पता कहाँ कहाँ से पालक और भिंडियां तोड़ तोड़ के ला रहे थे कि भाई हाँ ये प्लांट बेस्ड आप फूड खाएं ना। एक तो इस चीज़ के ऊपर ये फोकस करें कि एनिमल प्रोडक्ट्स की कंजप्शन कम से कम करो, और दूसरी प्लांट बेस्ड फूड पे जाओ। और दूसरा जिस चीज़ के ऊपर ये ज़्यादा फोकस है, दे आर मेनली फोकस ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम, दैट सो कॉल्ड कि आपकी जितनी भी फूड चेन है, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द मेजर जो वाटर है ना सबसे ज़्यादा यहाँ यूज़ होता है, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन इमिशंस में भी काउंट किया जाता है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो सस्टेनेबल फूड चेन होगा तो उसमें ये है कि आप फर्टिलाइज़र का रिड्यूस यूज़ जो है वो कम करो, ऑर्गेनिक मैटर पे चीज़ों को लेके जाओ, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र जब यूज़ होती है तो उससे नाइट्रस ऑक्साइड की इमिशन होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंट यूज़ करवाया जाए। रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ है कि कम पानी से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना, अच्छे बीजों से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना, और लोकल वैरायटीज़ के ऊपर काम करो, बजाय इसके कि इम्पोर्टेड वैरायटीज़ लेके आओ और उनके ऊपर फिर डिजीज़ अटैक ज़्यादा होता है, पेस्ट
पेस्ट अटैक ज़्यादा होता है। उसके अलावा उनके अंदर उनकी अपनी जो एक क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है, जो पौधे की एक अपनी इम्यूनिटी है वो कम होती है यहाँ के, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के नहीं होते। सेम 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 केस इज़ ट्रू फॉर द होल्स्टीन फ्रिजियन काऊ। अब ये जितनी भी होल्स्टीन फ्रिजियन एचएफ ब्रीड है जिसके थ्रू हम ये गाय से दूध ले रहे हैं, अब ये क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया और उस रीजन की है तो ये ठंडे माहौल में रहती है। पाकिस्तान में हम जब इसको ह्यूमिड एनवायरनमेंट या इस तरीके के ट्रॉपिकल एरियाज में लेके आते हैं तो यहाँ फिर इसके लिए वो चीज़ें आर्टिफिशियली क्रिएट करनी पड़ती है जो कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहती। तो इस दफ़ा जो ये फोकस है वो सस्टेनेबल फूड सिस्टम के ऊपर है कि फूड भी आपकी आए और वो भी प्लांट बेस्ड फूड हो, और दूसरा ये है कि वो सस्टेनेबल तरीके से ग्रो की गई हो। उसकी एक सक्सेस स्टोरी अल्लाह का शुक्र है हमारे पास भी है कि लाइक वी आर द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान हु डेवलप्ड आर्सेनिक फ्री राइस। तो यहाँ जितना भी चावल आता है, आपको पता है चावल की फसल जो है सबसे ज़्यादा पानी इसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि फ्लड इरिगेशन की जाती है, हर वक्त फ्लडिंग रहती है, पानी की फ्लडिंग रहती है इसमें। तो हम चावल बगैर पानी के भी ग्रो करना जानते हैं और हमने ग्रो भी किया। एंड वी आर फर्स्ट वन इन पाकिस्तान मतलब आर्सेनिक फ्री हमने चावल पैदा किया, क्योंकि जब हम पानी की फ्लडिंग करवाते हैं तो उसमें आर्सेनिक क्योंकि हैवी मेटल बहुत है वो लीच डाउन होता है तो प्रोडक्ट में आ जाता है। चावल आपको पता है ज़्यादा बेबी फूड में इस्तेमाल होता है, तो ये बच्चों में आर्सेनिक पॉइजनिंग करता है। तो क्योंकि हल्की फुल्की ग़िज़ा होती है तो सेरेलैक वगैरह इसमें बनते हैं। तो अभी हमारा चावल जो है ये नेस्ले को हम दे रहे हैं, क्योंकि नेस्ले का जो सेरेलैक प्रोडक्ट आता है इसके अंदर वो चावल जो है ना वो यूज़ हो रहा है। तो ये मतलब इस चावल को वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली दिस दिस इज़ एक्चुअली द इंटरवेंशन इन द एग्री फूड सिस्टम कि आप किस तरीके से उसको सस्टेनेबल कर सकते हैं। तो अभी लम्स के साथ फिर हमने वो कोलैबोरेट भी किया और लम्स ने वहाँ ज़मीन के अंदर सेंसर्स वगैरह भी लगाए। अब उसकी जितनी मॉनिटरिंग है वो सेंसर बेस हम करते हैं कि अब ज़मीन को इतने टन इतने गैलन पानी चाहिए तो उतना ही देना होता है। और ज़मीन के अंदर हल चलाना भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हल चलता है तो फिर ट्रैक्टर चलता है, फिर इंजन चलता है, फिर वो धुआं छोड़ता है। तो इस तरीके से ना बेसिकली इस दफ़ा तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस है सर। थैंक यू सो मच नज़ाकत भाई। और मैं नज़ाकत भाई की बात को सेकंड करते हुए थोड़ा सा ऐड करूँगा कि अभी उन्होंने आर्सेनिक की चावलों वाली बात की थी, तो अगर आपने वैसे कोई केस स्टडी पढ़नी है तो इंटरनेट के ऊपर आपको सबसे मशहूर आर्सेनिक की केस स्टडी मिल जाएगी। एक केस स्टडी की थी, एक प्रोजेक्ट किया था यूएन ने बांग्लादेश के अंदर, वेयर दे यूजुअली टेस्टेड 600 वेल्स इन अ विलेज इन बांग्लादेश। एंड वहाँ पे ये देखा गया था कि उन 600 के 600 वेल्स में से अप्रोक्सीमेटली 90% हमारे पास ऐसे वेल्स थे जिनके अंदर हमारे पास आर्सेनिक का हैवी कंटेमिनेशन थी। एंड वो लोग पानी 20-20 सालों से पी रहे थे, एंड जिसकी वजह से दे यूजुअली आप कह लो वर डीलिंग विद आर्सेनिकोसिस, और उनको वो भी बाद में जाके पता चलता था। जाकिर भाई आपने पढ़ा हुआ ये वाली रिसर्च के फील्ड? नहीं दानियाल भाई मैंने पढ़ी नहीं है, वैसे आप बता रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको मैं डेफिनेटली स्टडी करूंगा। मैं आपको भेजूंगा ना जाकिर भाई, एंड इट इज जी रियली श्योर ग्रेट श्योर थिंग। श्योर ओके, सर श्योर अच्छा, सर। जरूर नजाकिर भाई, थैंक यू सो मच। एक और क्वेश्चन है, मिस आमना इकराम कह रही हैं, शी इज सेइंग कि हाउ डज क्लाइमेट डिप्लोमेसी बैलेंस नेशनल इंटरेस्ट्स विद द ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स? जी, जी सर, ये डेफ़िनेटली मैं पहले वैसे बता चुका हूँ कि किस तरीके से नेशनल इंटरेस्ट को बैलेंस बेसिकली क्लाइमेट डिप्लोमेसी है ही इसलिए कि नेशनल इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए ना, क्योंकि आप देखिए हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है? हमारा नेशनल इंटरेस्ट यही है कि हमारी प्रॉपर फूड पैदा हो जो जितने हमारे बच्चों को चाहिए। अब प्रॉपर फूड नहीं पैदा होगी तो हमारे बच्चों में मेल न्यूट्रिशन आ जाएगी। अगर बच्चों में खुराक की कमी का शिकार रहिएगा तो अल्टीमेटली दे विल बी आउट ऑफ स्कूल। तो हमारे जो अभी बच्चे कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा अब रेशो बढ़ गई है पाकिस्तान में कि आवर चिल्ड्रन आर गेटिंग आउट ऑफ स्कूल। उसकी मेन वजह यही है मेल न्यूट्रिशन। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट तो यही है कि हमारी प्रॉपर फूड प्रोडक्शन हो, पानी खराब ना हो, ठीक है, प्रॉपर मैरीन पॉपुलेशन सही हो, इकोसिस्टम बैलेंस हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्लाइमेट डिप्लोमेसी, अब फॉर एग्जाम्पल ये नेशनल इंटरेस्ट आपके कहीं कहीं से भी थ्रेट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रेट हो रही है, मैरीन पॉपुलेशन खराब हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, फॉरेस्ट कवर आपका खत्म हो रहा है, तो ये मतलब है कि आपके नेशनल इंटरेस्ट को थ्रेट है। अब नेशनल इंटरेस्ट को थ्रेट को ब्रिज करने के लिए क्लाइमेट डिप्लोमेसी है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी यूएन कॉप्स में हो रही है, तो वहाँ से मतलब निगोशिएशन होगी, आफ्टर दैट पाकिस्तान को बजट मिलेगा जिस वजह से पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को बैलेंस करेगा। और ग्लोबल ग्लोबल गोल्स आपको पता है 17 गोल्स हैं कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्लाइमेट एक्शन, ये रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ये 17 गोल्स के ऊपर काम करने के लिए भी पाकिस्तान को डेफिनेटली फंड चाहिए, ग्लोबल सपोर्ट चाहिए, एक रिसर्च इदारों की सपोर्ट चाहिए। तो वो डेफिनेटली इट ऑल इसका जो एक पूरा चैनल बनेगा वो वाया क्लाइमेट डिप्लोमेसी बनेगा ना। तो ये बेसिकली इसका आंसर बनता है।
ओके, थैंक यू सो मच नज़ाकत भाई। एंड आई गेस कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एंड आप लोग घबराइएगा मत, हम लोग नज़ाकत भाई को दोबारा लेंगे नेक्स्ट संडे। और मैं आप सभी के सामने इनवाइट करता हूँ डॉक्टर नज़ाकत को। नज़ाकत भाई, वी विल बी हैविंग ऑन नेक्स्ट संडे अ कॉप सिमुलेशन। एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप उसके अंदर एज अ चेयर आए। एंड दीज कैंडिडेट्स, दीज पार्टिसिपेंट्स विल बी प्रेजेंटिंग देयर स्टांसेस, जो कि इनको कंट्रीज डेजिग्नेट किए जाएंगे। तो ये जब आपके लिए प्रेजेंट कर रहे होंगे वाया ऑनलाइन, अभी तो वर्चुअल है, लेकिन तब आप इनको बता सकते हैं कि किस तरीके से अपनी ट्रेनिंग्स को, अपने आपके लिए वे ऑफ प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू एज अ चेयर। सो दिस इज द थिंग। एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा नजाकत भाई कि आपके लास्ट व्यू पॉइंट्स, ताकि हम लोग आज की इस ट्रेनिंग को थोड़ा सा आप कह लें इख्तिताम पसीर करें। Ji Daniel bhai, thank you so much for extending the kind invitation regarding the next Sunday program. Inshallah, I would love to be there. The cop simulation is always close to my heart. तो उसके लिए कोई मसला नहीं, inshallah I will be there and I will try my best to manage all these things at my end. पहली चीज। और as for the closing remarks, it was pleasure talking to all the respectable audience. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से मुझे इज्जत दी, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे इसके सदके। और सबसे बड़ी बात दानियाल भाई का, आई एम सो ग्रेटफुल सर कि आप यकीन करें, मुझे इतनी इज्जत तो पता कहीं भी नहीं मिलती जितनी मुझे आपसे मिलती है। तो दिस इज द रीज़न कि आपके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन है। अल्लाह ताला ऐसे ही आबाद रखे और फर्दर हमें किसी बड़े मकसद के लिए हमें तैयार करे और हमसे कोई अच्छा काम ले ना सर। तो इसके लिए बस एक काविश रहती है, बाकी अल्लाह मालिक है। सभी को पता है कि आई एम सो चिल है, रिलैक्स्ड है। मैं कभी वो ना किसी का मेंटोर बना हूँ, ना मुझे बनने का शौक है। मैं तो हमेशा अगले के साथ एज अ फ्रेंड चलता होता हूँ कि यार चीज़ों को मिलके टैकल करने की कोशिश करते हैं कि मिलके चीज़ों को करो। बंदा एक दूसरे के दरमियान, मैं समझता हूँ, इसलिए थोड़ा सा चिल होकर रिलैक्स होकर बात करता हूँ कि अगला बंदा कोई वो गैप ना फील करे, कोई हेजिटेट ना करे कि यार इस बंदे से बात करूँ कि ये नाराज तो नहीं हो जाएगा। हम नाराज होने वाले नहीं है। तो मतलब ये है कि किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इन एनी सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू गाइस। तो बंदा ना चीज़ की जो सपोर्ट है, मेरी सपोर्ट तो है ही है। अगर मेरे किसी भी फ्रेंड सर्कल में से भी किसी को आपको सपोर्ट चाहिए होगी ना, तो वो भी आपके लिए हाजिर रहेगी। क्योंकि मैं वो आदमी हूँ कि शायद मैं अपने काम के लिए तो किसी को नहीं बोलता, लेकिन जब किसी का काम हो और वो किसी के थ्रू हो, तो मैं सबसे पहले उस बंदे के पास पहुंच जाता हूँ कि यार ये इसका काम करवा दो। मेरा अपना काम होगा, शायद मैं उसके पास, उसी के पास भी होगा, तो मैं शायद कभी भी नहीं जाऊंगा ना। तो इसलिए ये कि एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माय साइड indicated whenever and wherever, always feel free to reflect. You will always find me at your doorstep. तो कोई मसले वाली बात नहीं है ना। तो बाकी दानियाल भाई, बहुत 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 बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने इज्जत दी और आपने मुझे इनवाइट किया। और चलो मेरा भी एक नॉलेज रिफ्रेश हो गया, जो कि काफ़ी टाइम से पुरानी चीज़ें हैं, तो फिर बंदा एक दफ़ा से नॉलेज रिफ्रेश हो जाता है। तो आपको पता है, मैंने तो टॉपिक भी आपसे आज को 2-3 घंटे पहले ही मेरे से पूछा था कि टॉपिक क्या है, मुझे पता तो चले कि टॉपिक क्या है। तो आपने बताया कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी पे बात होगी। मैंने कहा चलो एक जनरल डिस्कशन है, फिर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो कोई मसला नहीं है, मेरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई होंगी। कोई आपको ऐसा आंसर मिला हो कि जो सेटिस्फैक्टरी ना हो, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैं वो आपको प्रॉपर वो नहीं कर पाया। तो आप उसको डेफिनेटली स्टडी करें या बाद में दोबारा मुझे ही रीच आउट कर लें, तो मैं भी उसको दोबारा स्टडी करके आपको एक अच्छे तरीके से आंसर कर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम रियली हम्बल्ड एंड इंटरेस्टेड फॉर दिस कंसिडरेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नज़ाकत भाई। एंड थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने इन तमाम पार्टिसिपेंट्स को और मुझे भी अपने इनसे मुस्तफ़ीद किया। और यस, हम आपको दोबारा से इनवाइट करेंगे एंड हम आपको दोबारा से टाइम लेंगे फॉर द पॉप सिमुलेशन एज अ चेयर, बिकॉज उसके अंदर यू विल बी जजिंग ईच पार्टिसिपेंट क्रिटिकली एज अ जज। आप उनकी खामियां बताएंगे, आप इनकी खूबियां बताएंगे। एंड ये चीज़ इनको इन्हांस करेगी, इनको थोड़ा सा और ज़्यादा तराशेगी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द नेक्स्ट कमिंग कॉप्स। और मैं आप सभी को बता दूं, नज़ाकत भाई को तो पता है, मालूम है कि हमारे पास जो कॉप्स होती हैं वो सिर्फ 3 कॉप्स नहीं होती। हमारे पास जो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कॉप्स होती हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तकरीबन तकरीबन 14 टू 13 कॉप्स होती हैं, जिनका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता इन्वायरमेंट के साथ होता है। सो ये मत समझिएगा कि हमारे पास जो कॉप्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ UNFCCC की होती है, UNCBD की होती है या UNCCD की होती है। देयर आर 10 to 11 मोर कॉप्स जो कि इन 3 कॉप्स के अलावा भी होती है। सो दिस इज इट।
and I look forward to all of you in the next training session जो कि हमारे पास कल होगा, and उसके अंदर हमारे पास एक नया टॉपिक होगा, एक नए ट्रेनर होंगे, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की जो वर्कशॉप है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, एंड आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इल्म हासिल किया होगा डॉक्टर नज़ाकत भाई से. एंड यस, इफ़ यू नीड Nazakat Bhai, he will always be there for you, just like he is always there for me, and his knowledge is up to the mark. So once again, I would like to thank you. I would like to thank the remaining participants for coming to this first session. I look forward to seeing all of you tomorrow for the next session. Looking forward to seeing you all. अपना ध्यान रखिएगा. खुदा हाफिज. शब खैर. Good night.